Hello everyone, this side Ashish. Today we are going to start a new training. Uh, the standard we are going to train about is ISO 13053-1 2015 version. In the continuation of the last training video, that is of ISO 70258 benchmarking, a minimum requirement, the Six Sigma. This is standard ISO 13053-1 2015 is basically uh, give the detail about the DMAC methodology, and the title of the standard is Quantitative Methods in Process Improvement Six Sigma Part 1 DMAC Methodology. So here the screenshot of the standard of ISO. So this is the first page of the standard. Around 40 pages is there in this standard, and here my company logo is there. That is Edison Quality Registrar EQR. So this is the second standard we are going to discuss in the family of Six Sigma. Hope you get my last video over the Six Sigma. That is basically ISO 70258. That is the basic benchmarking requirement under the Six Sigma. So as I told you earlier, total 9 standard is there in the Six Sigma family, which are issued and published by the ISO, and which is a basically a standard form to understand the Six Sigma methodology and the requirement and further going for the implementation and their evaluation accountability. Earlier, there is no any standard present for the Six Sigma to make the things accountable as per the Six Sigma methodology. Different companies, different organizations, different persons are using different their expertise to do the things as per Six Sigma requirements. As this standard is published in 2011, this particularly DMAC methodology, ISO 13053-1, there is a standard way of accountability will be is formed after that to go for the Six Sigma measurement of the organization's processes. So initially, we have to first understand this title of this standard. That is basically quantitative methods in process improvement, Six Sigma. So we are not here talking about the organization improvement. We are here talking about the process improvement. So this is a very important thing to understand here. Firstly, कि हम यहाँ पे प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे हैं, ना कि ऑर्गेनाइजेशन इम्प्रूवमेंट की। तो जब भी हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की बात करेंगे। हमारा जो ओवरऑल एक माइंडसेट होना चाहिए कि हम प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहे हैं। एक प्रोसेस में सारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं बेसिक प्रोसेस के कॉम्प्लिकेशन के ऊपर, वो कितना क्रिटिकल है कि क्या उसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, तो एक प्रोसेस में भी कई सारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं और डिफरेंट प्रोसेसेस में एक ऑर्गेनाइजेशन के नंबर ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। तो इस चीज़ को आप एक माइंडसेट आप सेट कर लीजिए। ठीक है, और क्वांटिटेटिव मेथड्स जो हैं प्रोसेस इंप्रूवमेंट के, उसमें बेसिकली दो पार्ट्स हैं। पार्ट वन को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, डीमैक मेथोडोलॉजी को। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं स्लाइड के ऊपर सेकंड पेज पे। तो ये वीडियो दो पार्ट में होने वाला है। हम यहाँ पे पार्ट वन वीडियो ये हमारा है कि टोटल 14 क्लॉजेस हैं स्टैंडर्ड में। तो 50-50 पोर्शन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे थ्रू ट्रेनिंग वीडियो स्टैंडर्ड टू कम्प्लीटली। ठीक है, इस वीडियो को अगर कम्प्लीटली देखते हो तो आप येलो बेल्ट के लेवल के कहीं ना कहीं आपकी जो
अंडरस्टैंडिंग है वो येलो बेल्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपने इंडस्ट्री में आप वर्क कर रहे हो, एक अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग, आप क्वालिटी कंप्लायंसेस को लेके क्वालिटी एश्योरेंस में आप वर्क कर रहे हो, क्वालिटी कंट्रोल में आप वर्क कर रहे हो, तो जो अंडरस्टैंडिंग अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास है, आपने कुछ साल काम किया हुआ है, 4 ईयर 5 ईयर्स, और आपकी जैसी भी कॉम्पिटेंसी है, जो भी आपका आपने नॉलेज गेन की है, जो भी एक्सपर्टाइज आपने गेन की है, उसके बेसिस पे ही अगर आप ये वीडियो अच्छे तरीके से समझते हो, तो आपकी जो कॉम्पिटेंसी है वो ये लेवल तक की इस्टेब्लिश हो जाएगी। तो इसको समझने की कोशिश करिएगा ट्रेनिंग वीडियो के थ्रू। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो चीज़ें मैंने कवर की हैं सेकंड नंबर पेज पे स्लाइड के ट्रेनिंग के, वो है इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड का इंट्रोडक्शन की बात की गई है, जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके बारे में। उसमें पहला पॉइंट हमारा है इम्प्रूव। इम्प्रूव में जो पॉइंट्स आए हैं वो बिजनेस, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, प्रॉफिट। ठीक है, फिर है ड्राइविंग फोर्स, टू बी कॉम्पिटिटिव, एलिमिनेट एरर्स एंड वेस्ट। उसके बाद है अप्रोच प्रोजेक्ट, फोकस बिजनेस, statistical tool, good practice, value measurement, robust infrastructure, better project। सो मैं इन पॉइंट्स को अब आपको ब्रीफ करता हूँ। तो इंट्रोडक्शन में जो पर्पस बताया गया है सिक्स सिग्मा की, पर्पस है क्या सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने का अपने सिस्टम में, या फिर हम जब सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो वो क्यों करेंगे। तो उससे हमारा जो फर्स्ट पैरामीटर है वो हम बिजनेस को इम्प्रूव करना चाहते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, इम्प्रूव मीन्स हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, हमारी बिजनेस वैल्यू है, जो हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ जो है, वो हर किसी भी तरह का अगर हम इम्प्रूवमेंट एक बिजनेस में देखना चाहते हैं तो हमारा सिक्स सिग्मा का पर्पस हो सकता है। जो हमारी क्वालिटी परफॉर्मेंस है कंपनी की ओवरऑल, उसको इन्हेंस करना चाहते हैं, उसको एक मेच्योर लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, हम एक ऑप्टिमाइज लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, तब हम सिक्स सिग्मा की को इम्प्लीमेंट करते हैं। और साथ ही साथ हमें अगर इन प्रॉफिट्स डिलीवर करने हैं, हमें प्रॉफिट इंप्रूव करने हैं अपने, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करते हैं। या साथ ही साथ अगर हमारा कोई सीरियस बिजनेस रिस्क है, उसको एड्रेस करना है हमें, तो उसके लिए हमारा सिक्स सिग्मा बेनिफिशियल होता है। ठीक है, इसके साथ ही साथ जो मैंने पहले भी प्रीवियस स्टैंडर्ड में भी डिस्कस किया था कि सिक्स सिग्मा कहाँ से आया, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि 1980s में फर्स्टली सिक्स सिग्मा इंट्रोड्यूस हुआ था। एक कंपनी है, आप मोटोरोला आप जानते होंगे, उसने ये मेथड्स इम्प्लीमेंट किए थे स्टेप कहीं ना कहीं उन्होंने फाउंड किए थे और फॉर्म किए थे सिक्स सिग्मा को, और धीरे धीरे ये ग्लोबली मतलब फेमस हो गया, और धीरे धीरे सारी ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने अडेप्ट किया सिक्स सिग्मा को अपनी कंपनी में। और 2000 के समय से आईएसओ इस पे वर्क कर रहा था, और फाइनली जाके 2011 में ये स्टैंडर्ड्स पब्लिश हो पाए। ठीक है, तो ये कुछ हिस्ट्री है जो हमें जाननी चाहिए सिक्स सिग्मा के बारे में। तो हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। सो हमें बिजनेस रिस्क हमारा कोई है तो उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। इसके पीछे हम मतलब हमें वर्क करना है इन डेप्थ जाके, क्योंकि हमारा एग्जिस्टिंग हो सकता है और बहुत लंबे समय से। ठीक है, साथ ही साथ स्टैंडर्ड इंट्रोडक्शन में बात करता है ड्राइविंग फोर्स की। तो ड्राइविंग फोर्स हमें ये समझना है कि ड्राइविंग फोर्स क्या है सिक्स सिग्मा का, उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं कि हमें कम्पिटिटिव बने रहना है मार्केट में। ठीक है, उसके लिए सिक्स सिग्मा ज़रूरी है, और हमारा हमें जो एरर्स हैं और वेस्ट है उसको एलिमिनेट करना है। तो जब भी आप सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने की बात कहोगे, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात आएगी कमिटमेंट की, या फिर उसके रीज़न की, या फिर जो चीज़ें हमें एज अ प्राइम मूवर वर्क करेगी, उसको हम कहेंगे ड्राइविंग फोर्स हमारा क्या है सिक्स सिग्मा को।
इम्प्लीमेंट करने का, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव बने रहना। तो कॉम्पिटिटिव बने रहने के लिए और जो हमारे एरर्स हैं, वेस्ट हमारी कंपनी में, उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको एलिमिनेट करने के लिए हमें सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना है। और ये हमारा ड्राइविंग फोर्स होगा, हमारा मोटिवेशन होगा किसी भी कंपनी के लिए। तो अगर आप इन चीज़ों के लिए सोच रहे हो, आप बिजनेस ओनर हो, आप एक अच्छे प्रोफेशनल हो, ठीक है, तो जो आपके लिए ड्राइविंग फोर्स का वर्क है वो ये चीज़ें करेंगी। और सिक्स सिग्मा जो है वो बिजनेस की लैंग्वेज में बात करता है, मतलब ये स्टैंडर्ड लिखता है कि सिक्स सिग्मा स्पीक्स द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस वैल्यू मेजरमेंट थ्रू आउट द प्रोजेक्ट। इस चीज़ को समझना है कि ये यहाँ पे सेंटेंस स्टैंडर्ड क्यों लिख रहा है। हम कभी कभी, जैसे मैंने इनिशियली अपने सारे ट्रेनिंग में मैं बताता हूँ कि ये कहीं कंट्राडिक्ट नहीं करती है बिजनेस को लेके, बिजनेस की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको लेके। कहीं पे भी जब हम क्वालिटी एश्योरेंस की बात करते हैं, क्वालिटी माइंडसेट की बात करते हैं, तो कहीं ये कंट्राडिक्टरी नहीं है। या हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारा बिजनेस जो है इसकी वजह से जो उसका प्रोडक्टिविटी है, जो उसकी परफॉर्मेंस है, वो कहीं ना कहीं लैग करेगी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की हैं। जब आप लॉन्ग टर्म में बिजनेस रन करते हो तब आपको ये चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है। जैसे कि हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पे अभी लिमिटेड रिसोर्सेज में कंपनीज रन करती हैं इनिशियल फेज में, ठीक है। अभी हम उसके लिए बात करेंगे। वो जनरली एक मैनेज्ड स्टेज तक रहती है कि वो किसी तरह से क्रिटिकली मैनेज हो पाती हैं और एक प्रोडक्ट डिलीवर करती हैं। लेकिन जैसे जैसे ब्रांड की वैल्यू बनती है, फाउंडेशन की वैल्यू बिल्ड होती है, उसकी जो रीच है उसके प्रोडक्ट की, उसकी जो वॉल्यूम है बिजनेस का वो एक्सटेंड होता है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और ये चीज़ें क्रिटिकल हो जाती हैं समय पे इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज जो है बहुत वीक रहती है। इस चीज़ को समझना है और अ, हमें कोशिश करें कि कुछ चीज़ों को, या फिर जितना भी हो सकता है, जो भी हमारा स्टैंडर्डाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, प्रोसेस को लेके, मैनेजमेंट को लेके, प्रोडक्ट को लेके, वो डे वन से हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्ट है वो बेटर मिल पाता है हमें आगे चल के। नहीं तो चीज़ें, मतलब ये चीज़ें समय लेती है एक ऑर्गेनाइजेशन नॉलेज को डेवलप होने में। इसके बाद बात आती है इंफ्रास्ट्रक्चर रोबस्टनेस की, ठीक है। जब हम सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करते हैं, रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपॉइंट करते हैं, ऑथराइज करते हैं कंपनी में, और साथ ही साथ उनकी कॉम्पिटेंसी बिल्ड करते हैं थ्रू ट्रेनिंग, थ्रू अकाउंटेबिलिटी, तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रोबस्ट हो जाता है। यहाँ पे स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड बात करता है रोबस्टनेस की, इंफ्रास्ट्रक्चर के। इसके बाद एक बिजनेस केस की बात होती है कि जब भी हम सिक्स सिग्मा एक प्रोजेक्ट की बात करेंगे, उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस केस होना चाहिए। बिजनेस केस हम इस तरह समझ सकते हैं कि हमारे पास एक बेंचमार्क होना चाहिए, जिससे कि हम एक प्रोजेक्ट को बेटर बना सकें, क्लियरली हम उसको एग्जामिन कर सकें, कंपेयर कर सकें, ठीक है। और जो हमारा इम्प्रूवमेंट है उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी है, हमारे पास एक प्रॉपर बिजनेस केस होना है, हमारे पास एक बेंचमार्क होना जिससे हम कंपेयर करना चाहते हैं या फिर करें, और जिस लेवल पे हमको लेके जाना है अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने प्रोसेस को, ठीक है। सेकंड पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन में है स्कोप। इसमें है बिजनेस इम्प्रूवमेंट मेथडोलॉजी, डीमैक, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव एंड कंट्रोल, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ईच phases, expertise, organization, manufacturing process, service and transactional process। तो इनको मैं ब्रीफ करता इस पॉइंट को, स्कोप के।
सो जब भी आपसे सिक्स सिग्मा के बारे में कहीं पे भी आपको सुनने को मिले, आपसे कोई पूछे सिक्स सिग्मा है क्या, तो आप क्लियरली आपको आंसर करना है कि सिक्स सिग्मा इज द बेसिकली बिजनेस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी। ठीक है, ये क्लियर एक मीनिंग है सिक्स सिग्मा की। बिजनेस इम्प्रूवमेंट मेथोडोलॉजी ही सिक्स सिग्मा है। टोटल जो डीमैक मेथोडोलॉजी, इसमें 5 फेसेस आते हैं। फर्स्ट है डिफाइन, इसमें हम चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन का मतलब है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें अचीव क्या करना है, हमें किस तरह से चीज़ों को लेके जाना है, या फिर हमारा आउटकम क्या होना चाहिए, या क्या चीज़ें हमें एलिमिनेट करनी है या फिर इम्प्रूव करनी है। सेकंड जो फेस आता है इसमें है वो है मेज़र का, कि हम मेजरिंग कैसे कर रहे हैं उसको इवेलुएट करने के लिए। फिर मेज़र करने के बाद जो थर्ड फेस है वो एनालाइज करना है हमें, जो हमने मेज़र किया है। और उसके बाद हम उस फोर्थ फेज में इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं। और जब हमारा इम्प्रूवमेंट निकल के आता है तो उसे हमें कंट्रोल करना है। ये 5 फेजेस हैं डीमैक के, जो स्टेप स्टेप वाइज हमें फॉलो करने हैं। ठीक है, आगे अभी इसको समझने को मिलेगा आपको डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इम्प्रूव और कंट्रोल में हमें क्या क्या करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो नॉर्मेटिव रेफरेंस का। नॉर्मेटिव रेफरेंस इसका स्टैंडर्ड दिया हुआ है इसमें, जैसे कि मैंने पहले बताया, ISO 13053-2 क्वांटिटेटिव मेथड्स इन प्रोसेस इंप्रूवमेंट सिक्स सिग्मा पार्ट 2 टूल्स एंड टेक्निक्स। ठीक है, तो इस पार्ट 2 में टूल्स एंड टेक्निक्स की बात की है, ठीक है। ये इसको हम आने वाले दिनों में कवर करेंगे ट्रेनिंग वीडियो के थ्रू। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा समझाने के लिए नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग। फिर यहाँ पे एक थर्ड क्लॉज भी है नॉर्मेटिव रेफरेंस के बाद। उसमें कुछ की वर्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक जनरल आइडिया उसके देना चाहता हूँ। ठीक है, एक स्मॉल सी है जो सिंबल यूज किया गया स्टैंडर्ड में, उसका मतलब है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स, नॉन कन्फर्मिटीज। फिर है एम सी टी क्यू सी, नंबर ऑफ क्रिटिकल क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। एन यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट सर्वेड। ठीक है, तो ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं, मैथमेटिकल इक्वेशंस दिए हुए हैं, और उसके लिए ज़रूरी है इन कीवर्ड्स को जानना। साथ ही साथ म्यू की बात की गई है, लोकेशन ऑफ द प्रोसेस, पॉपुलेशन मीन वैल्यू। म्यू स्टार है ऑफसेट लोकेशन ऑफ द प्रोसेस, ऑफसेट पॉपुलेशन मीन वैल्यू। अभी इन 5 को आप समझ लीजिए, सी, म्यू, म्यू स्टार, एन सी टी क्यू सी, एन यूनिट्स। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्लॉज है, वहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट शुरू होती हैं। ये है बेसिकली आपका फंडामेंटल ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन। सॉल्व अ गिवन प्रॉब्लम, solution to given problem is not known, specific activity, gather data, extract information, design a solution, obtain result। ठीक है, तो यहाँ पे फंडामेंटल सिक्स सिग्मा की बात की गई है। फंडामेंटल क्या है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो जो फंडामेंटल्स हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमें एक प्रॉब्लम है कोई ऑर्गेनाइजेशन में किसी प्रोसेस के अंदर, उसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये फंडामेंटल हम इसको ले सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करने का, सिक्स सिग्मा को का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट करने का जो मेन रीज़न है कि जो हमारा कोई प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं, हम हमारी कंपनी के अंदर, हमारे प्रोसेस के अंदर देखने को मिल रहा है, या फिर जो भी हमारा सिस्टम है उसके थ्रू हम कहीं ना कहीं हमारे एक मैनेजमेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है। तो सिक्स सिग्मा हम तभी इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमारा सलूशन जो प्रॉब्लम का है वो नोन ना हो। ठीक
ज़रूरी है आपको एक माइंड में इसका बारे में नॉलेज रखना कि अगर हमारा सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा है किसी प्रॉब्लम का, तो तब उसको हम तब हमें एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने का, इम्प्लीमेंट करने का, अपनी प्रोसेस के ऊपर, अपनी इनोवेशन के अंदर एक ज़रूरत है उस चीज़ के लिए करने की। इसके इसके बाद जो हम स्पेसिफिक एक्टिविटी की बात करते हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में, वो क्या क्या चीज़ें हैं। वो पहला उसमें हमें गैदर डाटा करना होता है, हमें डाटा कलेक्ट करने हैं, ठीक है, उनका बंच बनाना है डेटा का। सेकेंड है उसमें से जो हमने डेटा कलेक्ट किया है उसमें से हमें इंफॉर्मेशन निकालनी है जो कि हमें हेल्प करेगी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये हमें इसके लिए एनालिसिस करनी पड़ेगी जो डेटा हमने गैदर किया हुआ है, और जब हम एनालिसिस कर लेंगे, इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर लेंगे उस डेटा में से, तो हमें एक सोल्यूशन को डिज़ाइन करना है कि हमारे लिए बेस्ट सोल्यूशन क्या हो सकता है प्रॉब्लम का, ठीक है। और उसके बाद हमें इंश्योर करना है जो हमने सोल्यूशन डिज़ाइन किया है आफ्टर एनालिसिस ऑफ गैदर डाटा, और उसमें से जो इंफॉर्मेशन हमें निकाली है उसके बाद उससे फिर हमें फर्दर इंश्योर करना है कि हमारा जो सोल्यूशन मिला था उससे हमारा जो डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो ऑब्टेन हमें हुआ कि नहीं हुआ। तो ये स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ हैं जो सिक्स सिग्मा में हमें करनी है। ये चार हैं जो मैंने बताई: गैदर डेटा, एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, डिज़ाइन अ सोल्यूशन, और डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें मिला कि नहीं मिला, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी स्पेसिफिक एक्टिविटी की जो हमने बात करी, वो जो नीचे टेबल दिया है हमने, उसमें हमें इसको अप्लाई करना है, ठीक। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट कॉलम है वो है क्वेश्चन, सेकंड कॉलम है सिक्स सिग्मा फेस, और थर्ड कॉलम है डिस्क्रिप्शन। फर्स्ट जो हमारा कॉलम है इसमें फर्स्ट पॉइंट है व्हाट इज द इशू, ये डिफाइन के फेस में है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, डिफाइन अ स्ट्रेटेजिक इशू टू वर्क ऑन। सेकंड रो में जो बात है, बेस द प्रोसेस नाउ, ये सेकंड मेजर फेस है, measure the current performance of the process to be improved. फिर थर्ड रो है what is causing this, analyze, ठीक है। ये एनालाइज फेज में हम एनालाइज द प्रोसेस टू establish the main root cause of poor performance, ठीक है। फोर्थ रो है जो हमारा what can be done about it, इसका फेस है improve का फेस है, improve the process through testing and studying potential solutions to establish a robust improved process, ठीक है। फिर फिफ्थ है हाउ कैन इट बी केप्ट देयर, कंट्रोल, control the improved process by establishing a standardized process capable of being operated and continually improved to maintain performance over time. सो यहाँ से आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है कि जो हमारे फाइव फेसेस हैं डीमैक के, डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव और कंट्रोल, हमें उसमें करना क्या है, उसको किस तरह से देखना है, और उसमें किस किस तरह की एक्टिविटी हमें करनी है, उसकी हमें मैट्रिक्स कैसे डेवलप करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। इसको देख, इसको समझ के आप जिस भी जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको समझने में हेल्प मिलेगी कि हमें करना क्या है डीमैक के अंदर, हम कैसे इम्प्रूवमेंट तरफ हमें लेके जाता है ये जो डीमैक की मेथोडोलॉजी है फाइव फेसेस में, ठीक है। सो आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर फंडामेंटल्स ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स विद इन ऑर्गेनाइजेशन में ही अब हम यहाँ पे फंडामेंटल की बात करेंगे। अभी हमने जनरल समझ लिया फंडामेंटल्स क्या है, मतलब सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इसमें फर्स्ट फंडामेंटल की बात होती है वॉइस ऑफ द कस्टमर की, परमानेंट फीडबैक लूप प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर, इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर, ईच फेज। जैसा कि आप जानते हो
रिटेल में वर्क कर रहे हो, अपने घर के लिए भी आप सामान मंगाते होगे, तो वहाँ पे भी फीडबैक आपसे मांगते होंगे आपके जहाँ से भी आपने बाय बाय किया है सामान को। तो वहाँ से आप समझते हो फीडबैक कितना इम्पोर्टेंट होता है, क्यों फीडबैक लिया जाता है, या फिर आप फीडबैक देते हो, कहीं जाते हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं आप होटल यूज़ कर रहे हो, कहीं आप ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज यूज़ कर रहे हो, दूसरी सर्विसेज है वो आप यूटिलाइज करते हो, तो आप कोशिश करते हो फीडबैक देने की। फीडबैक एक बहुत इम्पोर्टेंट तरीका है चीज़ों को फर्दर इम्प्रूवमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे भी वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू बात होती है सिक्स सिग्मा में एक फीडबैक लूप इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो बात है सिक्स सिग्मा की वो शुरू होती है कस्टमर की नीड और एक्सपेक्टेशन से, ठीक है। तो उसको हमें क्लियरली समझना है कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन को, और वॉइस ऑफ कस्टमर के थ्रू परमानेंट फीडबैक सिस्टम डेवलप करना है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में, जिससे कि हम इम्प्रूवमेंट लेके आ सकें। ये ऑन गोइंग मैनर में होता है, इसलिए यहाँ पे लूप की बात हो रही है कि जब भी हम चीज़ें करें, कुछ रिवीजन करें या इम्प्रूवमेंट को लेके आए, या फिर जब भी हम कोई एनालिसिस वे में एनालाइज करें चीज़ों को, जो हमने इंफॉर्मेशन गैदर की है, तो उसको हमें कंपेयर करना है जो हमारी कस्टमर की नीड एक्सपेक्टेशन है उसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। या फिर जो हमारा सारे फेजेस हैं, 5 फेजेस हैं, उनको भी जब हम इवेल्युएट करें, तब हमें कस्टमर और नीड एंड एक्सपेक्टेशन को समझ के 5 फेजेस में इवेल्युएशन करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, ये जैसे मैंने बताया ये फंडामेंटल है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है और इसको ऑनगोइंग मैनर में लेके चलना है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में। फिर इसके बाद बात आती है नेक्स्ट फंडामेंटल की, वो है अकाउंटेबिलिटी। उसमें है फाइनेंशियल एफिशिएंसी, सेफ्टी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। फर्स्ट स्टेप, one set of data, forecast, similar outcomes, effectiveness, adaptability and efficiency, regular review। सो यहाँ पे जो अकाउंटेबिलिटी की बात है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो सिक्स सिग्मा का प्रोजेक्ट होता है उसमें हम अकाउंटेबल होना बहुत इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि मेन जो हमारा फोकस है वो इम्प्रूवमेंट का है, जो कि अकाउंटेबिलिटी से निकल के आती है। इसके साथ ही यहाँ पे जब भी हम सिक्स सिग्मा की इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, तो उससे एक ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल एफिशिएंसी पे असर पड़ता है। उसके रिस्पेक्ट में एक क्लॉज डिटेल्स देता है, बताता है कि हमें फाइनेंशियल एफिशिएंसी जो है ऑर्गेनाइजेशन की उसको ध्यान में रखना चाहिए जब भी हम सिक्स सिग्मा के इम्प्रूवमेंट के लिए जाएँ, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करें। और फाइनेंशियल एफिशिएंसी के साथ-साथ जो सेफ्टी है ऑर्गेनाइजेशन की और कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, उसको भी हमें मतलब कंपेयर करना है, एक साथ इनको रख के एक मैट्रिक्स में डेवलप करनी है इनको लेके, जिसमें कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी और सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन, तो इनका एक मिक्स फॉर्म में हमें यूज़ करना है इन कैरेक्टरिस्टिक्स को, और उसके अकॉर्डिंग हमें सिक्स सिग्मा को इम्प्लीमेंट करना है। और जो हमारी प्रायोरिटाइज करेंगे सिक्स सिग्मा को इसके बेसिस पे करेंगे, इन 3 की फैक्टर्स के बेसिस पे, तभी जाके हमारी जो चीज़ें हैं वो अकाउंटेबल कहलाएंगे कि हमने जो डिसीजन मेकिंग की है सिक्स सिग्मा को लेके वो अकाउंटेबल है, जबकि हम इन 3 पॉइंट्स को कंसीडर करके ही चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं। सो जो ये और यही चीज़ फर्स्ट स्टेप कहलाएगी जब भी हम इस्टेब्लिश करने जाएंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को, कि हमने फाइनेंशियल एफिशिएंसी, सेफ्टी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को ध्यान में रख के एक प्लान बनाया, एक डिसीजन लिया है एज अ फर्स्ट स्टेप फॉर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। और जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको हमें अच्छे तरीके से इवेलुएट करना है कि क्या फाइनेंशियल इफेक्ट आएगा सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने पे अपने ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस पे। और
जो हमारी कंपनी का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, वो साथ में बैठकर एक साथ एक सेट ऑफ डेटा की बात होती है। यहाँ पे एक सेट ऑफ डेटा पे वर्क करेंगे, जो कि जो मैंने बताया कि जो इफेक्ट पड़ेगा फाइनेंशियल एफिशिएंसी के ऊपर, सेफ्टी को लेके, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके, उस पे ये दो डिपार्टमेंट, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, वो वन सेट ऑफ डेटा पे वर्क करेंगे और फोरकास्ट करेंगे कि क्या आउटकम्स हमारे निकल के आ सकते हैं इस सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के बाद। और उसके बेसिस पे हमारी डिसीजन मेकिंग होगी एज अ फर्स्ट स्टेप टू फर्दर इम्प्लीमेंटेशन एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। इसके साथ ही यहाँ पे जो बात आती है, जो आउटकम्स की बात होती है, वो इफेक्टिवनेस के मैनर में हमें देखना है और एडेप्टेबिलिटी के मैनर में भी देखना है। और इस चीज़ को हमें रिव्यू करना है रेगुलरली, मतलब एक ऑनगोइंग मैनर में हम प्री स्टेज में तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ एक ऑनगोइंग मैनर में इसको हमें रेगुलरली रिव्यू करना है। तो इस क्लॉज को आप समझ चुके होंगे अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे स्टैंडर्ड क्या कहना चाहता है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को रिस्पेक्ट में। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं। नेक्स्ट क्लॉज है अपना मेच्योरिटी ऑफ प्रोसेसेस of an organization. Concept of maturity. One initial, second is managed, three is defined, fourth is the quantitatively managed, fifth is the optimized and gradually change. So यहाँ पे एक मेच्योरिटी ऑफ प्रोसेसेस की बात कर रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन में कि प्रोसेस की मेच्योरिटी लेवल क्या होती है, वो कैसे कैसे मेच्योर होता है। तो स्टैंडर्ड में एक ग्राफ बताया हुआ है इसके लिए, ठीक है। इनिशियली उन्होंने इस स्टैंडर्ड में डिफाइन किया गया है जो लेवल्स हैं, लेवल 1 टू लेवल 5, जो अभी मैंने बताया, इनिशियल, मैनेज्ड, डिफाइंड, क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, इनको इनके बारे में एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, उसको मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके साथ ही साथ एक डायग्राम भी बनाया हुआ है क्वांटिटी इम्प्रूवमेंट का और मेच्योरिटी लेवल का, हम कैसे कैसे लेवल 1 से लेवल 2, लेवल 3, फिर लेवल 5 तक पहुंचते हैं। सो अगर हम जैसे एक लेवल 1 पे रहते हैं तो वहाँ पे जो बात आती है, जब हमारी कंपनी में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है किसी प्रोसेस का, तो हम उसको बोलते हैं लेवल 1। ठीक है, कि आपकी कंपनी आप रन कर रहे हो, उसमें हमने कोई प्रोसेस इवेल्युएट की कि हमें ये प्रोसेस डेवलप करनी होगी और उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो वो हमारा इनिशियल लेवल कहलाएगा, लेवल 1। फिर लेवल 2 पे आते हैं जहाँ पे मैनेज्ड की बात होती है। वहाँ पे हमारा डिस्क्रिप्शन तो है और हम एक तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जैसा कि हमारा कस्टमर की डिमांड है, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को फॉर्मलाइज कर रहे हैं, जैसा कि हमारा कस्टमर हमें कहता है उस हिसाब से उस प्रोसेस को हम लेके जा रहे हैं। ये लेवल 2 की बात आती है, इसको मैनेज्ड कहेंगे। ठीक है, तो इनिशियल हमारा हो गया, मैनेज्ड हो गया, लेवल 2। फिर थर्ड लेवल है डिफाइंड। लेवल 3 जो डिफाइंड है, इसमें जब हम प्रोसेस को क्लियरली अपनी कंपनी के सारी तरह की जो भी प्रोसेस उसमें हम आइडेंटिफाई की है, वो अच्छी तरह से स्टेब्लिश्ड हो गई हैं, डिफाइंड हो गई हैं, तो उसको हम उस कैटेगरी को कहेंगे लेवल 3 की ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी जो प्रोसेस है वो लेवल 3 में है और डिफाइंड है क्लियरली। फिर फोर्थ लेवल में बात आती है क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड की। तो जो हमने लेवल 3 में हमारी प्रोसेसेस डिफाइंड हो चुकी हैं क्लियरली, उनको हमें क्वांटिटेटिवली जब हम मैनेज करेंगे कि उसमें से जो हमारी डेटा निकल के आ रहे हैं उसको हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करेंगे, इवेलुएट करेंगे और फर्दर इम्प्रूवमेंट में लेके जाएंगे तब। और हमारे पास इंडिकेटर्स हैं इम्प्रूवमेंट के लिए, हमारे जो भी रिजल्ट्स निकल के आ रहे हैं उसको हम फर्दर एज अ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेलुएट कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं, या फिर जो हमारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको मैच कर सकते हैं। तो उस स्टेज को हम बोलेंगे लेवल 4 और क्वांटिटेटिवली मैनेज्ड। फिर इसके बाद जो फिफ्थ स्टेज आता है वो है ऑप्टिमाइज।
ऑप्टिमाइज्ड में बात होती है जब हमने इनिशियल लेवल से फिर मैनेज्ड, फिर डिफाइन, फिर क्वांटिटेटिवली मैनेज तक आ चुके हैं। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिवली हम मैनेज कर रहे हैं सिस्टम को, हमारे पास डेटा निकल के आ रहे हैं। ऑप्टिमाइज्ड में हम चीज़ों को सेट करेंगे, जो भी हमारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उनको किस तरह से हम सेट करते हैं, कैलिब्रेट करते हैं, या फिर उसका लेवल हमें कैसे ऊपर नीचे करना है, उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, क्या इम्प्रूवमेंट के वहाँ पे बातें कर सकते हैं हम, या फिर क्या इम्प्रूवमेंट की चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं और एक इफ़िशिएंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम जाते हैं, एक एफिशिएंट प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तब वहाँ पे लेवल 5 हमारा रीच कहीं हम करते हैं, जिसको कहते हैं ऑप्टिमाइज्ड। हमारी प्रोसेस ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो ये लास्ट लेवल है, लेवल 1 से लेवल 5 तक। तो हमारा जो सिक्स सिग्मा का गोल है कि हम लेवल 5 तक पहुँचे और चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर सके, ठीक है। ऑप्टिमाइज की आप मीनिंग जानते हो, ठीक है। ऑप्टिमल हमें रिजल्ट्स चाहिए, ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं। और इसमें साथ ही साथ स्टैंडर्ड में एक बहुत एक अच्छा वर्ड यूज करता है जो लेवल की बात है यहाँ पे, चेंज ग्रेजुअली, ठीक है। तो ये जो लेवल 1 से लेवल 2, फिर लेवल 3, फिर लेवल 4, फिर लेवल 5 की जो जर्नी है ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस की, वो ग्रेजुअली होती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप सडनली कोई चेंज ला सकते हो, लेवल 1 से लेवल 2 पहुंच सकते हो, या फिर लेवल 3 पहुंच सकते हो, या उससे आगे जा सकते हो। तो जब भी आप ये स्टेज या फिर एक लेवल आप करोगे, तो जो ये चेंज है वो ग्रेजुअली होगा। आपको नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ चेंजेस करने पड़ेंगे, तब जाके ही कहीं आप एक लेवल से दूसरे लेवल पे इंक्रीज कर सकते हो अपने प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ तक बात रही अपनी जो मेच्योरिटी ऑफ प्रोसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपको समझ में आया होगा। और ये डीमैक के ही जो मैंने डिफाइन किया, डीमैक के सर्कल में ही वर्क करता है, ठीक है। जो अपना लेवल 1 अपना फर्स्ट स्टेप आप मान सकते हो, सेकंड स्टेप इज द लेवल 2, फिर थर्ड स्टेप इज द लेवल 3, और लेवल 4 जो है वो फोर्थ स्टेप है, और लेवल 5 अपना फिफ्थ स्टेप है। और इसमें इस जर्नी को करने के लिए आपको कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट को फॉलो करना होता है। आप नंबर ऑफ इम्प्रूवमेंट्स आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ते हैं, इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं, तब आप इन स्टेजेस में, इन लेवल्स में इंक्रीज करते हो अपने प्रोसेस को, ठीक है। तो यहाँ तक इस क्लॉज की बात रही। अब नेक्स्ट क्लॉज पे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्लॉज है अपना मेच्योरिटी ऑफ प्रोसेसेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ मेच्योरिटी, वन इनिशियल, सॉरी। तो यहाँ तक ये हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। ये भी फंडामेंटल्स ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट विद इन ऑर्गेनाइजेशन का एक फंडामेंटल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, फंडामेंटल्स हैं, क्योंकि ये रिलेशनशिप, इसमें जो पॉइंट है वो है रिलेशनशिप विद क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड ISO 9001 क्वालिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है ISO 9001 से, तो उसको ब्रीफ किया गया है, ठीक है। जो इसमें पॉइंट्स हैं वो है क्वालिटी प्रिंसिपल्स, अप्रोच, फैक्चुअल, प्रोसेस, प्रैक्टिस, सिक्स सिग्मा मेथड, powerful tools for top performance, life cycle management, operating system improvement, root, human competence, core knowledge, survive in the long term, superior product, lower cost, better consistency, ठीक है। तो जब भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात करेंगे, तो हमारे पास एक इनिशियल, एक हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, एक मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए, जिस जो एज अ बेस काम करेगा फर्दर प्रोजेक्ट सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करने में आपके सिस्टम में। तो ISO 9001 इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि मैंने अपने लास्ट ट्रेनिंग्स में बताया हुआ है ISO 9001 के बारे में, आप देख सकते हो उसके वीडियोस। तो यहाँ पे ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब मैं इन पॉइंट्स को ब्रीफ करता हूँ जो यहाँ पे दिए हुए हैं। सो इस क्लॉज में ISO 9001 के साथ साथ ISO 9001 9000 की बात होती है,
ठीक है। तो जो क्वालिटी प्रिंसिपल्स है ये ISO 9000 से निकल के आते हैं। अगर आपने ट्रेनिंग मेरी देखी होगी या फिर आपको अवेयरनेस होगी, ISO 9000 जो है वो बेसिकली फंडामेंटल्स एंड क्वालिटी प्रिंसिपल्स की बात करता है। इसमें क्वालिटी प्रिंसिपल्स डिफाइन किए गए हैं और इसी से हमारा जो फैक्चुअल जो हमारा अप्रोच है सिक्स सिग्मा का वो निकल के आता है कि हम कैसे फैक्चुअल हमारा अप्रोच हम आगे लेके जाएंगे। और जब हम हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी ISO 9000 के क्वालिटी प्रिंसिपल्स को लेके, तभी हम इसको फैक्चुअल बना सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारी प्रैक्टिस है कॉन्टिन्यू इम्प्रूवमेंट की, उसको हम सस्टेन कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे मतलब जो फैक्चुअल और प्रोसेस की बात की है, प्रैक्टिस की बात की है, उसको डिफाइन किया है। साथ ही साथ जो सिक्स सिग्मा मेथड है, इसको एक पावरफुल टूल स्टैंडर्ड बताता है जो कि हमें टॉप परफॉर्मेंस एक ऑर्गेनाइजेशन के हर एरिया के लिए हेल्प करता है कि हम उससे टॉप परफॉर्मेंस क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं या फिर उसको एज अ टॉप परफॉर्मिंग कैसे बना सकते हैं हर एक एरिया को कंपनी के। साथ ही साथ यहाँ पे स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है कि जब सिक्स सिग्मा ऑपरेट करता है या फिर ज़्यादा इफेक्टिव सिक्स सिग्मा का तब हो जाता है जब हम एक लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के एस्पेक्ट में इसको देखते हैं कंपनी के अंदर और सारे एरियाज में इम्प्लीमेंट करते हैं। अ, तभी हमारा जो ये लाइफ साइकिल का पॉइंट है यहाँ पे स्टैंडर्ड मेंशन करता है कि हमें जो ओवरऑल मैनेजमेंट सिस्टम है, जो लाइफ साइकिल है उसकी उसमें हमें जो सिक्स सिग्मा के हमारे मेथड्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जिससे हमारा सिस्टम मोर इफेक्टिवली अकाउंटेबल बने या फिर जो हमारे मेथड्स हैं वो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो सके। और जो हमारा बेस्ट इम्प्रूवमेंट्स हैं, जो हमारा जो मेच्योरिटी है लेवल 1 से लेवल 5 तक का, वो एक बेटर वे में हम अचीव कर सकें और जल्दी हमें रिजल्ट्स मिलें। ठीक है। साथ ही साथ जो हमारा एंटरप्राइज का ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी इम्प्रूव, जैसे मैंने बताया, वो एक बेटर वे में होता है। इसके साथ ही जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो बहुत इन्हेंस होती है और बहुत इंक्रीज करती है। और जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है और हमारा जो कॉम्पिटिटिव पोजीशन है मार्केट में, वो एक सस्टेनेबल पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हेंस करता है। इन सब चीज़ों को देख के हमें ध्यान में रख के हम जब भी अपने सिक्स सिग्मा के चीज़ों को इम्प्लीमेंट करें मेथड्स को, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारी लाइफ साइकिल है मैनेजमेंट की कंपनी के अंदर, उसमें हमें हर जगह सिक्स सिग्मा को हम लेके आए, इम्प्लीमेंट करें, इस्टेब्लिश करें, जिससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, जो हमारा कॉम्पिटिटिव पोजीशन है मार्केट का, वो एक सस्टेनेबल वे में पहुंच सके। ठीक है। इसके साथ स्टैंडर्ड में ट्रेनिंग लर्निंग जो कि सिक्स सिग्मा के मेथड्स को लेके हैं, उसके लिए एम्फसाइज करता है कि हम क्या बेनिफिट्स हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें ट्रेनिंग और लर्निंग पे ध्यान देना है सिक्स सिग्मा के मेथड्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे जब भी मतलब आप येलो बेल्ट से ग्रीन बेल्ट की बात करेंगे या फिर ब्लैक बेल्ट की बात करेंगे, तो जो मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और एनालिसिस है डेटा का, वो सारी चीज़ें हमारी कहीं ना कहीं उसमें एक अच्छी कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड होती है येलो बेल्ट के बाद ग्रीन लेवल में, फिर उससे ऊपर ब्लैक लेवल, फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट में। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ट्रेनिंग और लर्निंग, तो हमें इसका ध्यान रखना है। इसके साथ ही साथ जो कोर नॉलेज की बात स्टैंडर्ड करता है, जो भी हमारे प्रोसेस हैं, जो भी हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें से जो भी डेटा निकल के आ रहा है वो कलेक्ट करना है, स्टोर करना है एज अ कोर नॉलेज ऑफ ईच प्रोजेक्ट प्रोसेस, जो कि हमें हेल्प करेगा फर्दर एज अ बेनिफिट जब हम इंटीग्रेशन करने जाएंगे सिक्स सिग्मा मेथड्स का। ठीक है। तो यहाँ जो कोर नॉलेज है ये कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अपनी हर स्टैंडर्ड की ट्रेनिंग में ये बात बताता हूँ, जो कोर नॉलेज है वो क्या चीज़ें हैं,
जो भी चीज़ें हम डे टू डे एक्टिविटी में कर रहे हैं कंपनी में एक प्रोसेस के अंदर, वो कहीं ना कहीं जो भी उसमें से चीज़ें हमारी एक एज इंडिकेटर निकल के आ रही हैं, वो एज अ कोर नॉलेज हमें उसको स्टोर करना है, कलेक्ट करना है। ठीक है, और उससे हमें फर्दर हम जो इम्प्रूवमेंट के लिए जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत हमें हेल्पफुल होती है, या फिर ये डिसीजन मेकिंग होती है सही डिसीजन लेने में। और ये जो कोर नॉलेज है वो रिलेट हो सकती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन से लेके डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर प्लेस के प्रोसेस कैपेबिलिटी को लेके, इन सर्विस डेटा ऑन रिलायबिलिटी को लेके। ठीक है, ये सारी कोर नॉलेज के में ये सारी जो फैक्टर्स हैं जो हमने बात की, और ये हमें एज अ कोर नॉलेज मेंटेन करना है। और ये हमें फर्दर जो सस्टेनेबल हमें एक सिस्टम को बनाने की बात होती है, जैसे कि ISO 9004 था स्टैंडर्ड, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी की बात होती है। तो जब हमें लॉन्ग टर्म में सर्वाइव करना होता है तो ये कोर नॉलेज हमें हेल्प करता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब भी जो ये कोर नॉलेज है हमें मेंटेन करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब भी कोई पर्सन आपके यहाँ से छोड़ के जाता है, जॉब चेंज करता है, ठीक है, या फिर रिटायर होता है, तो ये जो कोर नॉलेज है वो मतलब लैप्स हो जाती है, या फिर लॉस ऑफ नॉलेज आप कहते हैं हम। ठीक है, तो इसको टेक केयर करते हुए हमें जो भी हमारे इंडिकेटर्स हैं या फिर जो भी हमारे डेटा हम एज एन एनालिसिस फर्दर यूज कर सकते हैं, उसको हमें स्टोर करना है। और जो ये सिक्स सिग्मा है या फिर ISO 9001 है, इनका जो ओवरऑल हमारा एंड प्रोडक्ट निकल के आएगा या फिर आउटकम निकल के आएगा, उसमें हमारा जो प्रोडक्ट है वो सुपीरियर बनेगा, हमारी कॉस्ट डिक्रीज करेगी, लोअर कॉस्ट हम दे सकते हैं, और एक बेटर कंसिस्टेंसी दे सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। तो ये एंड गोल है जो कि हम एक्सपेक्ट करते हैं जब हम भी हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएं स्टैंडर्ड्स को लेके। ठीक है, तो यहाँ तक ये क्लॉज कंप्लीट होता है, फंडामेंटल्स। और इसके बाद जो बात आती है, हम नेक्स्ट क्लॉज पे चलते हैं, जो कि है फिफ्थ क्लॉज, जिसमें सिक्स सिग्मा मेजर की बात होती है। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है पर्पस, क्वांटिफाइंग, कंपैरिजंस, एनालिसिस, इनसाइट्स, causes. Three chief measures are characteristics: product return rate, number of problem reports, and on-time delivery. Continuous measures, cost of poor quality. सो मैं अब इन पॉइंट्स को ब्रीफ करता हूँ आपको। तो सिक्स सिग्मा मेजर अपना फिफ्थ क्लॉज है स्टैंडर्ड का। उसमें पहला है हमारा सिक्स सिग्मा पर्पस डिफाइन किया गया कि इसका पर्पस क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट जो पर्पस है कि हमें क्वांटिफाई करना है जो परफॉर्मेंस है एक प्रोसेस की। ठीक है, ये एक पर्पस है सिक्स सिग्मा मेजर का। और साथ ही साथ जो हमारा हमारे हमने क्वांटिफाई किए हैं डेटा को एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको कंपेयर करना है, एनालाइज करना है, और उसमें से इंसाइट्स हमारे क्या निकल के आ रहे हैं। ठीक है, जो कि हमारे परफॉर्मेंस को डिफाइन करेंगे, डिसाइसिव बनाएंगे। ठीक है, या फिर हम उसमें से क्या इम्प्रूवमेंट्स लेके आ सकते हैं, उसमें हमें हेल्प करेगा एज अ आउटकम। ठीक है, स्टैंडर्ड में जो एक इम्पॉर्टेंट बात आती है वो चीफ मेजर की। चीफ मेजर्स हमारे क्या हैं प्रोसेस में लेके, वो है उसमें पहला है प्रोडक्ट रिटर्न रेट, सेकंड है नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्ट्स, और थर्ड है ऑन टाइम डिलीवरी। ठीक है, तो ये जो भी हम चीफ मेजर्स हैं या फिर मेजर्स की बात कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैसे कि हम जानते हैं कि सारी प्रोसेस इंटर रिलेटेड होती हैं। तो हम जब नंबर ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स रन कर रहे होते हैं प्रोसेस में, एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो ये कहीं ना कहीं एक हम की फैक्टर होती है डिसीजन लेने के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए। ठीक है, और जब हम इन चीफ मेजर्स को कॉन्टिन्यूली हम चेज करते हैं,
कॉन्टिन्यूसली मेजर करते हैं, तो ये हमें एक एज इंडिकेटर काम करती है कि कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोसेस का तो हमें कितना इम्प्रूव करना है। ठीक है, और साथ ही साथ तो एक यहाँ पे बात आती है द कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की, जो एक मेजर है, जो कि नंबर ऑफ मेजर के को मिलकर ग्रुप बनाता है, उससे हमारा जो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी है वो डिफाइन होती है। तो ये इतनी चीज़ें जो है पर्पस में डिफाइन होती है, और ये सिक्स सिग्मा मेजर्स के रिस्पेक्ट में हमें इस तरह से ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे पर्पस है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है वो है डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी की बात है, डीपीएम। ये बहुत स्टैंडर्ड आपने सेंटेंस सुना होगा, ये डीपीएमओ की बात होती है सिक्स सिग्मा में, डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी की। सो डिफेक्ट्स जो इसका एक फॉर्मूला होता है, बाई डीपीएमओ इज इक्वल टू सी बाई एन यूनिट्स इंटू एन सी टी क्यू सी इंटू 1 मिलियन। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। सी यहाँ पे नंबर ऑफ डिफेक्ट्स हैं, एन यूनिट्स जो हैं वो है नंबर ऑफ सैंपल सर्वेड, और जो एन सी टी क्यू सी है क्रिटिकल टू क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स का जो नंबर है वो है। ठीक है, इस तरह से वाई डी पी एम अपना जो डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी है वो डिफाइन होता है। ठीक है, इसको हम बात करते हैं, ये मेज़र है जो हमारी जो क्वालिटी परफॉर्मेंस है उसको हमने कितना अचीव किया है, उसको डिफाइन करता है वाई डी पी एम ओ। फिर एक्सप्रेस होता है रेट पर मिलियन ऑफ सच सी टी क्यू सी डिफेक्ट्स। और यही जो अपना वाई डी पी एम ओ है, इसी से हम आगे सिग्मा स्कोर इवेलुएट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं। इसके लिए स्टैंडर्ड हमारे पास चार्ट हैं जो स्टैंडर्ड में दिए हुए हैं। ठीक है, अभी हम उसको यहाँ आगे हम देख सकते हैं कि हमारा जो सिग्मा स्कोर का है, यहाँ पे जो एस्टिमेशन है, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ डीपीआईएमओ बाय डीपीआईएमओ इज, अगर हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है वो ये है, जैसे कि फर्स्ट रो में आप देख सकते हो, तो वहाँ पे सिग्मा स्कोर क्या होगा 2, या फिर ये आ रही है अपनी वैल्यू निकल के बाय डीपीआईएमओ की, तो हमारे सिग्मा स्कोर क्या होंगे। इसी तरह से रेफरेंस दिए हुए हैं एस्टिमेशन के लिए सिग्मा स्कोर के। तो हमने जैसे लास्ट टाइम बात करी थी 3.4 की बात हुई थी कि सिग्मा स्कोर 6 की 17,258 स्टैंडर्ड जब हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक वर्ल्ड क्लास की बात हुई थी कि वहाँ पे हम सिग्मा स्कोर जब 6 होता है तो वर्ल्ड क्लास हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये जब हमारी डीपीआईएमओ की वैल्यू 3.4 रहेगी तब हमारा सिग्मा स्कोर 6 रहेगा। तो इस तरह से हमें एस्टिमेट करना है। इसका एक अनेक्शर है स्टैंडर्ड में जो काफ़ी उसमें डिटेल्ड है, और यहाँ पे जैसे 5 वैल्यूज हमने डिफाइन की सिग्मा वैल्यूज सिग्मा स्कोर की, वहाँ पे काफ़ी सारे हैं, अराउंड 20 हैं, 30 हैं। ठीक है, जिससे हम एस्टिमेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन हमारा जो भी डिफेक्ट्स पर मिलियन अपॉर्चुनिटी निकल के आए डीपीएम। ठीक है, इसके बाद हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो भी हमारा जो एस्टिमेशन है वो हमारा 1.5 सिग्मा शिफ्ट मीन से है। जो भी हमारा सिग्मा स्कोर हमने यहाँ पे इवेल्युएट किया है, ठीक है, उसमें हमने जो हमारा शिफ्ट है वो 1.5 का है, उसको सिग्मा शिफ्ट कहते हैं, जो कि मीन से है। वो बेस्ड ओवर द प्रैक्टिस है, बेस्ड ओवर द एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्री में एक यूज हो रही, जब लॉन्ग टर्म में वर्क करोगे कंपनी को देखोगे इम्प्रूवमेंट के लिए।
तब ये इम्पोर्टेंट हो जाता है जो क्यूब शिफ्ट को यूज़ करते हैं, सिग्मा शिफ्ट को। और जो हमारा सिग्मा स्कोर है उसको हम एज अ बेंचमार्क यूज़ करते हैं इंडस्ट्री में टू कंपेयर क्वालिटी या फिर परफॉर्मेंस जो ऑर्गेनाइजेशन की है या फिर प्रोडक्ट की है, एसेस की है। ठीक है, यहाँ पे भी मतलब वर्ल्ड क्लास के स्टैंडर्ड में भी डिफाइन किया गया, सिक्स को बताया गया है कि 3.4 जो डीपीएमओ है वो हमारा वर्ल्ड क्लास बनाता है। जैसे कि मैंने बात की थी इनिशियली इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल इंडस्ट्री में इस्टेब्लिश हुआ था और वहाँ पे ये रिलेवेंट है। अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग मतलब डीपीएमओ के वर्ल्ड क्लास होने के लेवल्स हैं। सिग्मा स्कोर जो है उसके रिलेवेंट उसकी वैल्यू भी डिफरेंट है। ठीक है, इसके साथ ही साथ स्टैंडर्ड में एक एग्जांपल देता है कि कैसे हमें डिफाइन करना है, इन वैल्यूज को कैसे देखना है। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट में 1000 CTQCs हैं, और ठीक है, और जो परफॉर्मेंस लेवल है उस प्रोडक्ट का निकल के हमारा आ रहा है 3.5 डीपीएमओ का, तो जो प्रोबेबिलिटी होगा एक प्रोडक्ट के डिफेक्ट फ्री होने के लिए उस प्रोडक्ट के जो भी एक यूनिट हमारी निकल के आ रही है उस प्रोडक्ट की 1 माइनस 0.000034 के पावर 1000 होगा, जो कि हमारी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगी 0.996600। ठीक है, तो इस तरह से हमें उसको लेना है, हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल के आ रही है प्रोडक्ट की, उसके डिफेक्ट फ्री होने चाहिए। साथ ही साथ एक और एग्जांपल देता है, अगर एक बैच है 150 यूनिट्स उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि उसमें डिफेक्ट ना आए, वो होगी 0.996606 टू द पावर 150। ठीक है, इस तरह से देखना है, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वो निकल के आएगी 0.60। ये चीज़ें हैं, ये मैथमेटिकल आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो प्रोबेबिलिटी आप समझ रहे होगे। तो हमें यहाँ पे सिक्स सिग्मा में प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं एक प्रोडक्ट के डिफेक्ट फ्री होने के लिए। ठीक है, सो जो मैंने एग्जांपल दिया आपको 150 यूनिट्स का, मतलब उसमें हमें अगर डिफेक्ट फ्री उसमें से देखना है कि हमारी जो यूनिट्स निकल के आई है वो डिफेक्ट फ्री हो, तो उसका जो हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आएगा 0.60। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि 0.60 बहुत ही एक इनिशियल लेवल है। तो हमें फर्दर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी लेवल है वो 0.6 से कहीं ना कहीं 0.9 के तक जाए या फिर उससे ऊपर जाए, जिससे कि हमारी प्रोबेबिलिटी इम्प्रूव हो और हमारा जो डिफेक्ट का सिनेरियो है आउट एज आउटकम जो हमारी 150 यूनिट्स हमने ली थी वो बेटर हो सके। ठीक है, तो इस तरह से मतलब हमें चीज़ों को देखना है। और जब आप एक मास प्रोडक्शन में रहते हो, जब आपने प्रोसेस स्टैब्लिश कर दी, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे भी वेरिएशन की गुंजाइश नहीं होती है। आप किसी भी इंडस्ट्री में रहो, वहाँ पे वेरिएशन जो है प्रोडक्ट में वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, क्योंकि जो कंपनी की रेपुटेशन है, ब्रांड वैल्यू है, प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट से रिलेटेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो तभी इन्हेंस होता है, इम्प्रूव होता है जब आपका जो वेरिएशन है प्रोडक्ट में वो मिनिमम हो। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी प्रोबेबिलिटी बेटर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स थे डीपीआईएमओ को लेके, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे बात है सिग्मा स्कोर की, सिक्स सिग्मा मेजर के अंदर ही। ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन, ऑफसेट, शिफ्ट वैल्यू, process mean variation between a long term period। ठीक है, तो ये आपने ग्राफ कहीं ना कहीं देखा होगा, मैथ्स में पढ़ा होगा।
स्कूल टाइम में ये ग्राफ, ठीक है। सो स्टैंडर्ड में जो चीज़ें बताई गई हैं कि जो हमारा सिग्मा स्कोर है वो डिराइव होता है इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, जो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आप कर्व देख रहे हो, ठीक है। और जैसे कि मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले कि 1.5 जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, ऑफसेट है, जो कि हमें एक हमने हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर प्रैक्टिस से आइडेंटिफाई की है कि हम 1.5 का स्टैंडर्ड डेविएशन क्यों देते हैं, वो स्टैंडर्ड में यहाँ मेंशन कर रखी है। और सो जब भी 1.5 स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे, तो जैसे हमारा सिग्मा स्कोर अगर 6 आ रहा है तो 4.5 हमने लिया था, तो वो जो डिफरेंस है 6 और 4.1 का वो 1.5 है। और जो ये 1.5 है इसी को हम शिफ्ट वैल्यू कहेंगे। और ये 1.5 हाँ जो वेरिएशन है, डेविएशन है, इसको हम लेने का जो मेन रीज़न है, जब भी हम शॉर्ट और लॉन्ग टर्म पीरियड में काम करते हैं, प्रोसेस वर्क करती है, तब ये हमें ये रिजल्ट देखने को मिलते हैं। और ये तब हमें एक बेटर जो हमारा रिजल्ट है, स्कोर है, जेड स्कोर है, वो देखने को मिलता है। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे हाँ अपने प्रोसेस में सिग्मा के, तो ये सारी चीज़ें निकल के आएंगी, तब आप बेटर समझ सकते हो, ठीक है। और फर्दर एग्जांपल्स के लिए आपको हमारी कंसल्टेंसी के थ्रू हम हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए डिटेल में जाके, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज़ें थी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास पे चलते हैं, जो कि है नेक्स्ट स्लाइड पे। इसमें फिर है रोल्ड थ्रूपुट RTY, ये भी सिक्स सिग्मा का एक मेजर है, जो कि हमें आइडेंटिफाई करना होता है रोल्ड थ्रूपुट एल्ड। इसमें हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, सिंगल यूनिट, प्रोसेस स्टेप्स, फ्री ऑफ डिफेक्ट्स, नॉट एडजस्टमेंट रेट, गो थ्रू रेट, प्रोसेस स्टेप्स, इंडिपेंडेंस, रियल परफॉर्मेंस। सो जो रोल थ्रूपुट यील्ड है RTY, ये डिफाइन करता है एज अ मेजर कि एक जो सिंगल यूनिट है एज अ प्रोडक्ट, वो थ्रू सीरीज ऑफ प्रोसेसेस उसकी जो प्रोबेबिलिटी है फ्री ऑफ डिफेक्ट होने की वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं सिंगल प्रोडक्ट के डिफेक्ट फ्री होने के थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, ठीक है, जो कि एक सीरीज से होकर निकलता है एक प्रोडक्ट। और ये जो RTY है, जब हम सीरीज ऑफ प्रोसेसेस की बात करते हैं, तो इसमें होता क्या, जो फर्स्ट टाइम थ्रू यील्ड होता है, वैल्यू निकल के आती है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट प्रोसेसेस के फर्स्ट टाइम थ्रू यील्ड से। अभी हम इसको आगे समझेंगे डायग्राम उससे। और जो फर्स्ट टाइम थ्रू यील्ड है वो इंक्लूड नहीं करती है कोई भी रिवर्क, रिपेयर, एडिशनल एडजस्टमेंट और डिले और डाउन टाइम को, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। और इसे हमें जो RTY है इसको कहते हैं नॉन एडजस्टेड रेट, गो थ्रू रेट, ठीक है। तो ये तो इसको और तरह से हम डिफाइन करते हैं RTY को, नॉन एडजस्टेड रेट और गो थ्रू रेट। अब हम डायग्राम पे चलते हैं। सो डायग्राम यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 500 यूनिट्स आ रही हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं, ऑपरेशन 10 है, ऑपरेशन 20 है, ऑपरेशन 30 है। 500 यूनिट्स आ रही हैं यहाँ से। तो 500 यूनिट्स में रिवर्क हो रहा है 10 यूनिट्स में। तो जो इसका यील्ड रेट होगा वो होगा 500 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 500, जो कि आया 0.980, ठीक है। फिर ऑपरेशन 20 में जो स्क्रैप है वो 10 है, रीवर्क है 6 ही। तो जो यहाँ से 500 में से 10 माइनस किया था हमने, 490 आए थे। तो 490 में से ये जो 10 है और 6 है इसको माइनस करेंगे और डिवाइडेड बाय 490। तो इसका जो यील्ड रेट आया वो आया 967 पॉइंट 0.967। फिर
हमारी जो बची 490 में से यूनिट्स वो बची 474। अब इन 474 में से जब हम ऑपरेशन 30 में जाते हैं तो उसके बाद हमें इसमें से 5 स्क्रैप निकलते हैं, रिवर्क 20 निकलते हैं और हमारी बच जाती हैं 449 यूनिट्स। इसका जो यील्ड रेट है वो 474 माइनस 20 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 474 और उसकी वैल्यू जो निकल के आती है यील्ड रेट की वो है 947। तो जो हमारा रोड थ्रूपुट यील्ड है वो हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करने से 0.980, फिर ये 0.967, फिर 0.947। तो इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे तो जो हमारा रोड थ्रूपुट यील्ड है वो है 897 का। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी है हमारी एक प्रोडक्ट के थ्रू नंबर ऑफ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस कि वो डिफेक्ट फ्री हो जब भी वो बन के निकले। तो इस तरह से हमें रोल थ्रू आउट यील्ड को आइडेंटिफाई करना है, मेजर करना है। और जो हमारा रोल थ्रूपुट यील्ड है ये एक रियल परफॉर्मेंस को दिखाता है कि हमारा ओवरऑल प्रोसेस की परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसकी जो मैंने रोल थ्रूपुट यील्ड के बारे में बताया कि नॉन एडजस्टेड रेट है, गो थ्रू रेट है, या फिर एक ये रियल परफॉर्मेंस है एक प्रोसेस की। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। इस तरह से ये मेजर कंप्लीट होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फिर नेक्स्ट जो मेजर है वो है रिटर्न रेट, RR। तो रिटर्न रेट में जो चीज़ें हैं, रिटर्न रिक्वेस्ट और मेजर ऑफ शिपमेंट ओवर टाइम पीरियड, नॉर्मलाइज्ड मेजर, ये कीवर्ड्स मैंने लिए हैं इसमें। सो रिटर्न रेट हम किस तरह से समझ सकते हैं, ये ज़रूरी है कि जो नंबर ऑफ रिटर्न्स क्या आ रहे हैं, हमें रिक्वेस्ट क्या आ रही हैं उससे समझ सकते हैं, या फिर रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न कोई आता है उससे समझ सकते हैं। और एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लिए के अंदर ये जो रिक्वेस्ट हैं या फिर जो रिटर्न्स हो रहे हैं उससे हम रिटर्न रेट को हमें आगे निकालना है और ये हमारा एक मेजर होगा। ये टाइम पीरियड मंथ भी हो सकता है या फिर एज पर जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उस पर डिपेंड करेगा कि आप जो स्पेसिफिक पीरियड है रिटर्न रेट का वो कैसे इवेलुएट कर रहे हो। सो जो अपना रिटर्न रेट होगा वो जो हम रिटर्न किया हमने नंबर ऑफ रिटर्न्स या फिर रिक्वेस्ट ऑफ रिटर्न जो है उसको डिवाइड करेंगे जो मेजर ऑफ शिपमेंट है, जितना हमने शिपमेंट भेजी थी करी थी अपनी कंपनी से, इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे आप रिटर्न जो आइटम्स हुए हैं नंबर ऑफ, उसको जब हम शिपमेंट से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रेशियो निकल के आएगा वो रिटर्न रेट कहलाएगा, जो कि स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे नॉर्मलाइज्ड मेजर की बात की गई है कि हमें एक एवरेज को चेक करना है यहाँ पे जब भी हम रिटर्न रेट आइडेंटिफाई करें ओवर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, तो हमें मेंटेन करना है कि जो हमारा एवरेज है रिटर्न रेट का वो कहीं ना कहीं बैलेंस्ड रहे। ठीक है, इस तरह से ये एक मेजर का काम करेगा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट अपना आता है वो है नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स रिपोर्टेड, NPRs, कस्टमर ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम ड्यूरिंग ए स्पेसिफाइड पीरियड। और सेकंड इसमें है CVRT, क्रिटिकल मेजर एंड माइनर। ठीक है, तो ये कीवर्ड्स मैंने लिए हैं। नंबर ऑफ प्रॉब्लम रिपोर्टेड जो है NPR, इसमें प्रॉब्लम्स जो जनरेट होंगी वो कस्टमर ओरिजिनेटेड होंगी और साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम हमें आइडेंटिफाई करना है कि, एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में कितनी कस्टमर ओरिजिनेटेड प्रॉब्लम्स रिपोर्ट हुई, जो कि मंथ्स भी हो सकते हैं या फिर क्वार्टरली हो सकता है या फिर हाफ ईयरली हो सकता है। वो आप ही ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का क्या डिसीजन है। और ये जो
प्रॉब्लम्स हैं वो क्वालिटी को लेके होगी प्रोडक्ट के, और ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई इंस्टॉलेशन हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है आपकी, तो हर चीज़ में काउंट होगी प्रॉब्लम्स। और इसमें 3 कैटेगरीज बेसिकली होंगी। इस तरह से मतलब स्टैंडर्ड एडवाइस करता है कि 3 कैटेगरीज आपको आइडेंटिफाई करनी है कि किस तरह की प्रॉब्लम है, उसमें सीवियरिटी जो होगी उसकी, वो क्रिटिकल हो सकती है, मेजर हो सकती है, माइनर हो सकती है। और उसके अकॉर्डिंग उसका एक्शन प्लान आपको डिसाइड करना है कि उसकी सीवियरिटी के बेसिस पे कि किस पर्टिकुलर कंडीशन में हम क्या हमारा एक्शन प्लान होगा, हम क्या सोल्यूशन उसके रिस्पेक्ट में प्रोवाइड कराएंगे प्रोडक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो नेक्स्ट हमारा सिक्स सिग्मा मेजर है वो है ऑन टाइम डिलीवरी, OTD, टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरीज, परसेंटेज ऑफ ऑर्डर्स पर स्पेसिफाइड टाइम। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कंपनी के लिए जब हम टाइमलीनेस ऑफ डिलीवरीज की बात करते हैं। ठीक है, उसमें हम बात करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि जो परसेंटेज ऑफ ऑर्डर जो कि हम डिलीवर कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे, जो कि हमने टाइमली डिलीवर किया है, तो ये हमें आइडेंटिफाई करना है कितने परसेंट हमने ऑर्डर को टाइमली डिलीवर किया, जो भी हमारी शेड्यूलिंग रिक्वायरमेंट हमारी कस्टमर के साथ एग्री हुई थी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम में। ठीक है, तो ये ऑन टाइम डिलीवरी एज अ मेजर आपको आइडेंटिफाई करना है, सिक्स सिग्मा कहता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है? COPQ, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी इसमें समझने की जरूरत है। पहला कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, इसमें जो कीवर्ड लिया मैंने, कॉस्ट अक्रॉस इंटायर कंपनी, प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर, large part producing and fixing defects, not included any loss to customer dissatisfaction related। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एक जेनरिक टर्म है, मतलब जब भी आप अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जब मैं यहाँ पे वर्ल्ड क्लास बनने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड टर्म है जो यूज होता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी की। तो कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है आप कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को समझिए, जो कि COQ है, क्योंकि कवर करता है पूरी कंपनी में आने वाले सारे की फैक्टर्स का, जिसमें है प्रिवेंशन, अप्रेशल, इंटरनल फेल्योर, एक्सटर्नल फेल्योर। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, और साथ ही साथ जो एक लार्ज पार्ट है COQ का कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का, वो रिलेट करता है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी, COPQ, क्योंकि यहाँ पे मेजर है सिक्स सिग्मा का, जो कि COPQ क्यों आता है, उसके फैक्टर्स हमें इस तरह से देखने हैं कि प्रोड्यूसिंग और फिक्सिंग डिफेक्ट में जो हमारी कॉस्ट आ रही है, एज वो इंटरनल फेलियर के थ्रू हो सकती है, एक्सटर्नल फेलियर के थ्रू हो सकती है, तो वो क्या है हमारी COPQ, जिसकी वजह से हमारी मतलब जो कॉस्ट है प्रोड्यूस करने का किसी प्रोडक्ट को, या फिर डिफेक्ट्स फिक्स करने का जो हमारी कॉस्ट है उसको देखना है। ठीक है, तो अपना COPQ जो है वो COQ का ही पार्ट है, एक लार्जर पार्ट है। ठीक है, तो ये हमें एज अ मेजर आइडेंटिफाई करना है। और जो COPQ है इसमें सारी चीज़ इस तरह की कॉस्ट आती हैं, जिसमें कि अगर हम किसी प्रोडक्ट को शिप करना पड़ता है, जो हमारा डिफेक्टिव प्रोडक्ट है उसको रिप्लेस करने के लिए, या फिर डायग्नोस करने के लिए जो रूट कॉज हम आइडेंटिफाई करेंगे, रिपेयर करने के लिए, स्क्रैप करने के लिए, रीटेस्ट करने के लिए, रीपैकेज करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारी जो है COPQ में आती हैं, उसमें हम इसको ऐड करेंगे। साथ ही साथ जो COPQ है इसमें जो चीज़ें हमें नहीं इंक्लूड करनी है वो है लॉस ऑफ कस्टमर है, या फिर
कोई कॉस्ट हमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन को लेके या फिर डिससेटिस्फेक्शन को लेके हमें बियर करनी है, वो चीज़ें हमें कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी में नहीं ऐड करनी है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी आप यहाँ पे समझ सकते हो, और मैंने जो ब्रीफ किया ट्रेनिंग के थ्रू, कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या है, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या है, तो उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, और कैसे COPQ जो है एक लार्जर पार्ट है कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो नेक्स्ट स्लाइड पे है। अब यहाँ से नेक्स्ट क्लॉज हमारा शुरू होता है, जो कि 6 क्लॉज है, 6 सिग्मा पर्सनल एंड देयर रोल्स। सो इसमें पहला है जनरल रोल, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट। तो जो 6 सिग्मा पर्सनल एंड देयर रोल्स हैं, वो डिपेंड करेगा कि आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, कॉम्प्लेक्सिटी क्या है प्रोजेक्ट की, उसके ऊपर ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है 6 सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके, तो उसमें पर्सनल हमें रोल डेफिनेट करने हैं, आइडेंटिफाई करने हैं, और ये ट्री के फॉर्म में उसका जो सिस्टम बनाना है, ये टोटल उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो सबसे पहला जो उसमें चीज़ आती है, इस ट्री को समझते हैं। तो पहला जो है हमारा 6 सिग्मा स्टीयरिंग कमेटी। ये स्टैंडर्ड ग्राफ स्टैंडर्ड में दिया हुआ है, ये ट्री जो मैंने यहाँ पे दी है। तो अपना पहले सबसे ऊपर आ जाता है 6 सिग्मा स्टीयरिंग कमेटी, उसके नीचे है 6 सिग्मा डेवलपमेंट मैनेजर, डिप्लॉयमेंट मैनेजर, फिर उसके नीचे है 6 सिग्मा चैंपियन। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं। फिर 6 सिग्मा डिप्लॉयमेंट मैनेजर के अंदर जो चीज़ें हैं वो मास्टर ब्लैक बेल्ट आता है। ठीक है, और मास्टर ब्लैक बेल्ट जो है वो ब्लैक बेल्ट से इंटरलिंक्ड है। ठीक है, और जो ब्लैक बेल्ट्स हैं वो फिर ग्रीन बेल्ट से रिलेट करते हैं, फिर जो ग्रीन बेल्ट हैं वो येलो बेल्ट से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्री समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब भी हम 6 सिग्मा प्रोजेक्ट को इस्टेब्लिश करें अपने यहाँ, साथ ही साथ 6 सिग्मा चैंपियन जो है वो 6 सिग्मा डिप्लॉयमेंट मैनेजर से इंटरलिंक्ड रहेगा, और स्टीयरिंग कमेटी है वो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर से रिलेट करेगी। ठीक है, और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर दो यहाँ पे डिफाइन किए गए हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। और प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है वो मास्टर ब्लैक बेल्ट से रिलेटेड रहेगा, इंटरलिंक्ड रहेगा। इस तरह से ये ट्री हमें फॉर्म करनी है। ठीक है, तो नीचे से अगर देखें तो येलो बेल्ट्स हैं सबसे इम्पोर्टेंट, ये मतलब जो हमारा प्रोडक्शन लाइन होता है वहाँ पे ये इनकी जॉब होती है, यहाँ वहाँ पे इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। तो हमने डेटा जनरेट करने की है। फिर उनसे ऊपर होती है ग्रीन बेल्ट की जगह, जो कि एक प्रोसेस को फिजिकल फॉर्म में भी और ऑफिशियल फॉर्म में भी रिव्यू करते हैं चीज़ों को। उसके ऊपर फिर ब्लैक बेल्ट आते हैं। अभी हम आगे इसको समझेंगे कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकी अलग अलग बेल्ट्स की। फिर मास्टर ब्लैक बेल्ट आता है उसके ऊपर। फिर उसके ऊपर 6 सिग्मा डिप्लॉयमेंट मैनेजर की बात है। ठीक है, और फिर 6 सिग्मा चैंपियन और 6 सिग्मा स्टीयरिंग कमेटी की बात है। तो इस तरह से हमें जब भी हम डिफाइन करें अपने 6 सिग्मा को प्रोजेक्ट को, तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर होना चाहिए। 6 सिग्मा से जो रिलेटेड पर्सन हम आइडेंटिफाई किए हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने दी है, उनका ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिससे कि एक बेटर चैनल इस्टेब्लिश हो और एक प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो वहाँ पे, और फर्दर हम इम्प्रूवमेंट के लिए बात कर सकें, डेटा को एनालाइज कर सकें क्वांटिटेटिवली, और एक मतलब टाइमलेस मैनर में चीज़ों को एक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके। फिर आगे चलते हैं। फिर 6 सिग्मा पर्सनल एंड देयर रोल्स में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन की गई है कि चैंपियन कौन होगा, या फिर अदर रोल्स जो हैं वो क्या होंगे। जो चैंपियन है वो एक सीनियर मेंबर होना चाहिए। ठीक है, वो डायरेक्टर हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है,
जिसको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन रन करने की। ठीक है। और साथ ही साथ अगर उसके पास एक लार्ज डिग्री है, ठीक है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। और जिसकी बातों से वो इन्फ्लुएंस कर सके, अपनी बातों से, अपनी नॉलेज से, अपनी कॉम्पिटेंसी से, अपने एक्सपीरियंस से, जो उसके सबऑर्डिनेट्स है कंपनी में, उसको वो इन्फ्लुएंस कर सके। इस तरह की मतलब पर्सनालिटी होनी चाहिए, या फिर ऐसे इंडिविजुअल को आपको सेलेक्ट करना है चैंपियन पोजीशन के लिए, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए। और साथ ही साथ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी कि वो स्ट्रेटेजी डिटरमाइन कर सके कि उसकी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की स्ट्रेटेजी क्या होगी ओवरऑल, और किस तरह से हम इम्प्रूवमेंट को इवेलुएट करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, डेटा को एनालाइज करेंगे क्वांटिटेटिवली। साथ ही साथ जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव सेटिंग है एंड प्रोमोटिंग है, उसको हम कैसे अलाइन करेंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के साथ। क्योंकि जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है वो 9001 में करते हैं कि ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो उन ऑब्जेक्टिव वो बहुत बड़े फैक्टर हैं एक कंपनी के लिए, ऑब्जेक्टिव्स जो उसके होते हैं बिजनेस के। तो उनको सेट करना, साथ साथ प्रमोट करना सिक्स सिग्मा के, ये चैंपियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो भी आप चैंपियन डिसाइड करो या वर्क एलोकेट करो किसी को, तो ये सारे उसके अंदर क्वालिफिकेशन या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी पर्सनालिटी में होनी चाहिए। ठीक है। फिर साथ ही कैरेक्टरिस्टिक और रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर सेकंड जो पॉइंट आता है वो है डिप्लॉयमेंट मैनेजर की बात होती है। और डिप्लॉयमेंट मैनेजर जो कि जो भी होगा वो एक तरह से जो ओवरऑल सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है उसको ओवरसी करेगा एंड मैनेज करेगा। ठीक है। साथ ही साथ उसको प्रमोट करेगा अपनी कंपनी में, जिससे कि चीज़ें एक अवेयरनेस स्प्रेड हो सके यहाँ पे कंपनी के अंदर, सभी को नॉलेज हो सके कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। ठीक है। और जो भी ज़रूरतें पड़ती हैं रिसोर्सेज को लेके, चीज़ों के एलोकेशन को लेके, उसको उसको मैनेज करना है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना, जो डिप्लॉयमेंट मैनेजर होगा वो फुल टाइम ऑक्यूपेशन होगा कंपनी के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप थर्ड पार्टी हायर कर लोगे या फिर फॉर शॉर्ट टाइम वो आपके यहाँ की इस चीज़ को ओवर मतलब टेक केयर करेगा, ऐसा नहीं है। वो फुल टाइम ऑक्यूपेशन होना चाहिए उसका आपकी कंपनी में। और जो भी सिक्स सिग्मा के इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं थ्रू कमेटी, उसको प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्लॉयमेंट मैनेजर की है। और साथ ही साथ उसको डिटरमाइन करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सीनियर मैनेजमेंट के साथ, कि क्या चीज़ें एक्सपेंशन की ज़रूरत है हमें सिक्स सिग्मा को लेके, हम कैसे एक्सपेंड करेंगे चीज़ों को और विद इन कंपनी। ठीक है। और जो मास्टर ब्लैक बेल्ट्स हैं, ब्लैक बेल्ट्स हैं, ग्रीन बेल्ट्स हैं, जो भी हैं उनकी उनकी जो नंबर्स हैं वो कितने होने चाहिए जो कि एडिक्वेट होंगे ग्रीन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके, नेसेसरी हैं एक प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट के लिए, इफेक्टिवनेस के लिए। ये जो एक्सपेंशन है, पॉपुलेशन है लोगों का, ये सारी चीज़ें सीनियर मैनेजमेंट के साथ इसको डिस्कस करनी है। ठीक है। ये इसकी रिस्पॉन्सिबल रिलेशन है। फिर यहाँ पे लियाइस की बात आती है। लियाइस का मीन्स है कि इंटर रिलेशंस, मतलब जो एक लोअर लेवल या फिर सीनियर लेवल के बीच में इंटर रिलेशंस हैं, जो कम्युनिकेशन है, जो डेटा ट्रांसफ़र है, वो उसको वो सपोर्ट करेगा, उसमें वो हेल्प करेगा कि वो कैसी होनी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लियाइस का डिप्लॉयमेंट मैनेजर के लिए, ये होना चाहिए। और साथ ही साथ जो इसमें नेक्स्ट चीज़ आती है न्यू प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की और रिक्रूट करने की, कि हमें कहाँ पे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की ज़रूरत पड़ेगी नए सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए, ये भी उसको आइडेंटिफाई करना है। या फिर फर्दर हमें कोई रिक्रूट करना है ब्लैक बेल्ट, मास्टर ब्लैक बेल्ट कैंडिडेट सिक्स सिग्मा के लिए, तो ये भी डिप्लॉयमेंट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। ठीक है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट है
निगोशिएट करने के लिए। कभी कभी होता है सेकेंडमेंट की बात आती है कि इन अल्टरनेटिव अगर इन केस एक मास्टर ब्लैक बेल्ट की परफॉर्मेंस दूसरे से बेटर है तो उसको हम एक हाई प्रियोरिटी वाले सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय करते हैं। तो वहाँ पे जो निगोशिएशंस होंगी टीम में वो भी डिप्लॉयमेंट मैनेजर के रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं और उसमें जो सेकेंडमेंट सेट होगा वो भी डिप्लॉयमेंट मैनेजर को ही करना है और फर्दर उनको रीडिप्लॉय करना है। साथ ही साथ जो जो फैसिलिटी है जो गवर्न करेगी सिक्स सिग्मा के प्रोजेक्ट्स को वो भी उसको मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो भी उसमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड हैं वो सारी डिप्लॉयमेंट मैनेजर के अंडर आती है। उसको ही टेक केयर करना है कि वो फैसिलिटी अच्छे से मैनेज हो जिससे वो हम सिक्स सिग्मा सेंटर्स कह सकते हैं जिससे कि फर्दर हमारा जो सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट है वो स्मूथ वे में प्रोसेस हो सके। ठीक है। साथ ही साथ डिप्लॉयमेंट मैनेजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो फर्दर हमारे नए पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं सिक्स सिग्मा को लेके उनको भी वो सीख करता रहेगा या फिर आइडेंटिफाई करता रहेगा जहाँ पे भी उसको लगता है और या फिर उसकी नॉलेज के अकॉर्डिंग उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उसके स्किल्स के बेसिस पे कि कुछ पोटेंशियल प्रोजेक्ट्स हम और ऐड कर सकते हैं तो उसको वो सीख करता रहेगा विद टाइम। और फर्दर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी में डिप्लॉयमेंट मैनेजर की आता है वो है गेट रिव्यू। गेट रिव्यू का मतलब है कि जब एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हमने इस्टेब्लिश किया उसको एक फर्दर स्टेज में ले जाने से पहले आफ्टर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट हम पास करेंगे तो उससे उसके पहले जो भी रिव्यूज़ होंगे उसके हम यहाँ पे गेट रिव्यूज़ को कहते हैं तो उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है। ठीक है तो ये भी उसकी रिक्वायरमेंट है लेकिन स्टैंडर्ड यहाँ पे बोलता है कि जितना ज़रूरी हो सके मतलब एज नेसेसरी की बात करता है और मेजर गेट रिव्यू की बात करता है। तो जहाँ पे इम्पोर्टेंट हो वहाँ पे उसको पार्टिसिपेट करना है गेट रिव्यूज़ में। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की बात आती है। प्रोजेक्ट स्पॉन्सर वो होगा तो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर में जो जो चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे आपको मैंने ली हैं वो है वाइटली इम्पोर्टेंट प्रोसेस ओनर ड्यूटीज प्रोजेक्ट सक्सेस गेट रिव्यूज इफेक्टिवनेस institutionalization of solution old ways removal training satisfaction principal roles become champion in peers and other support SSP resource allocation roadblock removal gate reviews participation full implementation improve identification and realization evaluation with respect to potential application। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के रोल्स में आती हैं। ठीक है। अब इनको मैं डिटेल में बात करें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की स्टैंडर्ड कहता है कि ये वाइटली इम्पोर्टेंट है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के लिए उसके आउटकम को लेके। ठीक है। और जो प्रोजेक्ट स्पॉन्सर होगा वो बेसिकली प्रोसेस ओनर हो सकता है जैसे कि मैंने बात की थी जब AIAG के स्टैंडर्ड डेवलप करते हैं प्रोसेस मैनेजमेंट की तो वहाँ पे मैंने प्रोसेस ओनर की बताया था डिफाइन किया था प्रोसेस ओनर कौन हो सकते हैं जनरल मैनेजर हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम ये प्रोजेक्ट स्पॉन्सर जो है उसको एज अ प्रोसेस ओनर देखना है। ठीक है। और जो ड्यूटीज है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की उसमें है सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट है और जो इफेक्टिव यूज है गेट रिव्यूज के वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आए कि वो अच्छी तरह से इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए। ठीक है। फिर है इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनी प्रॉब्लम सोल्यूशन। अगर हमें कोई सोल्यूशन निकल के आ रहा है हमारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में तो उसको हम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर सके अपनी कंपनी में और फर्दर वो कहीं पे देखा ना जाए उस तरह की प्रॉब्लम
इस चीज़ का भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस चीज़ को कहीं ना कहीं इंश्योर करें। साथ ही साथ यहाँ पे बात आती है एक ड्यूटी में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की, रिमूवल ऑफ ओल्ड वेज। जब हमें एक नया सोल्यूशन मिल जाता है कोई प्रॉब्लम का, तो होता है उसमें कुछ ओल्ड बिजनेस तरीके जो होते हैं काम को करने के, उसकी जगह पे हमारा नए तरीके आ जाते हैं जब हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जो रिमूवल है पुरानी प्रैक्टिसेस का, पुराने तरीकों को करने का, उसको एक प्रोसेस से हटाना, ये भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। साथ ही साथ जो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ड्यूटी का, उसमें है सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ट्रेनिंग नीड्स। सेटिस्फेक्शन यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो सेटिस्फेक्शन ट्रेनिंग नीड्स के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो सबसे है जरूरी कि हमें ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर हमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है जो भी हमारे रिस्पेक्टिव स्टाफ्स हैं, जो कि हमने अभी ट्री में बात करी, वहाँ पे मास्टर ब्लैक बेल्ट्स थे, ग्रीन बेल्ट्स थे, येलो बेल्ट्स थे। ठीक है, तो वहाँ उनकी हमें ट्रेनिंग नीड को आइडेंटिफाई करना है, और साथ ही साथ उन्होंने ट्रेनिंग से कॉम्पिटेंसी बिल्ड की, और किस लेवल तक बिल्ड की, मतलब जो कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड थी उसको अचीव हुई कि नहीं हुई, इसको भी इंश्योर करना है। तब जाके हम कह पाएंगे कि सेटिस्फेक्शन ऑफ एनी ट्रेनिंग। तो ये भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के अंडर में आता है, ड्यूटी के अंदर। अब इसके बाद स्टैंडर्ड में प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के प्रिंसिपल रोल की बात होती है कि प्रिंसिपल रोल क्या होंगे प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के। सो जो प्रिंसिपल रोल में जो चीज़ें आती हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के, वो हैं, फर्स्ट इसमें आता है चैंपियन ऑफ सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी। तो चैंपियन होने का मतलब ये है कि उसके इक्विवेलेंट नॉलेज के, कॉम्पिटेंसी के, स्किल्स के, जो भी लोग हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनमें उसकी नॉलेज जो सिक्स सिग्मा मेथोडोलॉजी की है वो सबसे अच्छी हो। और साथ ही साथ कंपनी में कोई अगर हायर पोजीशन पे है तो उससे भी उसकी नॉलेज सिक्स सिग्मा को लेके बेटर होनी चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ प्रिंसिपल रोल में सेकंड पॉइंट आता है कि वो सपोर्ट, उसका उसको सपोर्ट करना, उसके एज अ रोल, जो भी नॉमिनेट हम कर रहे हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। ठीक है, उसके बाद उसको रिसोर्स प्रोवाइड करने हैं, जो भी हमें ब्लैक बेल्ट के थ्रू रिक्वेस्ट आती है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रिंसिपल रोल है उसका, कोई भी रोड ब्लॉक है जहाँ पे जाके सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट रुक रहा है या फिर उसको प्रॉब्लम आ रही है, एक ब्लैक बेल्ट को जब भी वो आपसे सजेशन मांगता है, एडवाइस मांगता है या फिर कोई एक्शन लेने की बात करता है, तो इस तरह के जो भी रोड ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव करना भी उसके प्रिंसिपल रोल में आता है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के। इसके बाद जो नेक्स्ट है, पार्टिसिपेट करना है उसको सारे तरह के गेट रिव्यूज में डायरेक्टली, और जो भी साइन ऑफ होगा उस फेज का, किसी या फिर किसी भी फेज का सिग्मा प्रोजेक्ट में, तो ये उसी को इंश्योर करना है कि कब साइन ऑफ होगा उस फेज से। ठीक है, तो जो पार्टिसिपेशन है उसको डायरेक्टली उसमें एंगेज होना है, जो भी गेट रिव्यूज होंगे। और साथ ही साथ नेक्स्ट जो उसका प्रिंसिपल रोल है वो है फुल इम्प्लीमेंटेशन। जो भी हमारे रिकमेंडेशन निकल के आ रहे हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके, ये प्रिंसिपल रोल उसके के अंडर आएगा, उसके प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के। साथ ही साथ जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो हुए हैं कि नहीं, जो हमारे इम्प्रूवमेंट हमने आइडेंटिफाई किए थे, वो उसको इंश्योर करना है कि वो रियलाइजेशन में आए, जो भी टीम इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड, और उसको मेंटेन किया जाए टाइम के साथ। तो ये भी जो इंश्योर करने की चीज़ें हैं ये प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल की प्रिंसिपल रोल में आती हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल रोल है प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का, वो है कि जो हमारा
कोई प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया है, उसका जो एप्लीकेशन है, जो उसमें से हमारे इम्प्रूवमेंट्स निकल के आए हैं, उनको इवेलुएट करना है। सिमिलर बिजनेस एक्टिविटीज़ को लेके अपने कंपनी में, या फिर उससे कोई रिलेटेड वर्क है आज बिजनेस में, तो उसमें कहाँ पे हम पोटेंशियली उसको अप्लाई कर सकते हैं। इन चीज़ों का भी एज अ प्रिंसिपल रोल उसको चीज़ों को इंश्योर करना और फाइंड आउट करना है। ये लास्ट रोल है, प्रिंसिपल रोल, जो कि प्रोजेक्ट स्पॉन्सर का है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रोजेक्ट स्पॉन्सर के बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइटल है वो है मास्टर ब्लैक बेल्ट की। इसमें जो चीज़ें हैं, उसमें पहला कीवर्ड में लिए सपोर्ट ब्लैक बेल्ट, DMAC and tool and technique, coach and mentor, advanced statics, internal consultancy, identification of suitable improvement projects with scope, periodic reviews, determining and providing training, lead improvement, use of consultancy service। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं उसके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी में, उसके रोल में। ठीक है, अब मैं इनको डिफाइन करता हूँ आपको। सो मास्टर ब्लैक बेल्ट अपर लेवल था, मतलब ब्लैक बेल्ट से एक ऊपर का लेवल था, अभी हमने ट्री डिस्कस किया था। तो मास्टर ब्लैक बेल्ट का जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है सपोर्ट करना ब्लैक बेल्ट्स जो वर्क कर रहे हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में। जिसमें जो है, पहला है कि जो डीमैक की मेथोडोलॉजी है, और उसके साथ ही जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए, उसमें सपोर्ट करें। वो कई तरीके से हो सकता है सपोर्ट करना ब्लैक बेल्ट्स को मास्टर ब्लैक बेल्ट के द्वारा, डीमैक मेथोडोलॉजी और सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स में। उसमें वो कोच और मेंटर कर सकता है ब्लैक बेल्ट्स को इन चीज़ों को लेके। ठीक है, और उसके बाद जो भी इम्प्रूवमेंट्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं नॉर्मेटिक प्रोजेक्ट्स को लेके, उनको उनके रियलाइजेशन में, उनको मेंटेन करने में और उसको सपोर्ट करना है। ठीक है, इसके बाद है बात आती है मास्टर ब्लैक एक इंटरनल कंसल्टेंसी भी देगा, जिसमें कि वो जो कि एडवांस स्टैटिक्स के लिए होगी। तो यहाँ पे एडवांस स्टैटिक्स की बात करता है, स्टैंडर्ड की। अगर इस तरह के एडवांस स्टैटिक्स की रिक्वायरमेंट आती है तो मास्टर ब्लैक बेल्ट है वो इंटरनल कंसल्टेंसी देगा, जो ओवरऑल टीम है अपनी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की। ठीक है, इसके बाद वो उसको असिस्ट भी करना है आइडेंटिफिकेशन में सुटेबल इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को लेके सिक्स सिग्मा के। ठीक है, कोई अगर प्रोजेक्ट लग रहा है कि जो सुटेबल है इम्प्रूवमेंट के लिए सिक्स सिग्मा के रिस्पेक्ट में, तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसमें जो कंप्लीट टीम है उसको असिस्ट करना। फिर उसको असिस्ट करना है स्कोप को डिटर्मिनेशन में, जो कि हम एक इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए आइडेंटिफाई कर रहे हैं या फिर सेलेक्ट कर रहे हैं। जो स्कोप होगा उसका, उसको डिटरमाइन करने में वो असिस्ट करेगा। उसके बाद जो उसकी पीरियोडिक रिव्यू होगी, जो भी इम्प्रूवमेंट्स प्रोजेक्ट से हमें मिल रहे हैं उनको पीरियोडिकली रिव्यू करना भी मास्टर ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद जो नेक्स्ट उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा टूल्स एंड टेक्निक्स की सिक्स सिग्मा को लेके ब्लैक बेल्ट्स और ग्रीन बेल्ट्स को जब भी जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है कॉम्पिटेंसी को इन्हेंस करने के लिए, वो अप्रोप्रिएट हो और इफेक्टिव हो, इसको इसका भी डिटरमाइन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर ब्लैक बेल्ट की है। और जो लास्ट चीज़ आती है मास्टर ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, जो भी इम्प्रूवमेंट हमारे निकल के आ रहे हैं उनको लीड करने की। ठीक है, तो जो भी प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट निकल के आएंगे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के थ्रू,
उनको लीड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मास्टर ब्लैक बेल्ट की होगी। साथ ही साथ स्टैंडर्ड एक बात कहता है कि एक कंसल्टेंसी सर्विसेज की यूज करने की बात करता है कि आप एक थर्ड पार्टी की मास्टर कंसल्टेंसी सर्विस आप हायर कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, जो कि मास्टर ब्लैक बेल्ट का फंक्शन प्ले करे आपकी कंपनी में। जब जब आपको लगता है कि आपके मास्टर ब्लैक बेल्ट का जो रोल है वो प्ले करने की जो एडिक्वेट नॉलेज है वो आपकी कंपनी के अंदर नहीं प्रेजेंट है किसी के अंदर, क्योंकि जो मास्टर ब्लैक बेल्ट है उसका नॉलेज बहुत वाइड बिजनेस नॉलेज उसका होना चाहिए। और साथ ही साथ कई कंपनीज की उसको सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। उस केस में आपको यहाँ पे एक्सपर्ट कंसल्टेंसी सर्विस हायर करने का भी सजेशन स्टैंडर्ड देता है। ठीक है, यहाँ तक बात रही मास्टर ब्लैक बेल्ट की। आगे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो अपना ब्लैक बेल्ट में जो हमारी कीवर्ड्स मैंने लिए हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी में है, वो डिलीवर एग्रीड बेनिफिट ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, identify and quantify opportunities, manage improvement, facilitate green belt projects, res- restive team mentorship, gate review presentation। तो ये सारी चीजें ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में हैं। सो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इनको। सबसे पहली चीजें हैं ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में कि उससे एक्सपेक्ट करती है कंपनी या फिर टीम जो है कि वो डिलीवर करेगा जो भी बेनिफिट्स सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट से निकल के आ रहे हैं, या फिर जो भी हमारे एग्री हुए हैं जो भी बेनिफिट्स टीम को डिलीवर करने का जो भी उसका इम्प्लीमेंटेशन है उसको इंश्योर करने का वो टाइम टाइम मैनेजमेंट। इसकी ये जो चीज़ें हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके जॉब प्रोफाइल से एक्सपेक्टेड रहेंगी। साथ ही साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी में, वो है ब्लैक बेल्ट टीम के साथ काम करेगा और आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई करेगा अपॉर्चुनिटीज को, इम्प्रूवमेंट को लेके। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ऑर्गेनाइज करने की मल्टी डिसिप्लिनरी टीम को, एक प्रोसेस जो कि ऑर्गेनाइजेशन का है, जो कि फर्दर उसे हेल्प करेगी टीम को या फिर जरूरत पड़ेगी इम्प्रूवमेंट को लेके, इम्प्रूवमेंट को मैनेज करने में, इस्टेब्लिश करने में। ठीक है, तो ये सेकंड ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थर्ड जो ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है लीड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स आर फैसिलिटेट ग्रीन बेल्ट प्रोजेक्ट्स यूजिंग डीमैक मेथोडोलॉजी। सो वो ब्लैक बेल्ट जो है लीड करेगा इम्प्रूवमेंट को लीड करने का मतलब है कि उसका जो अभी हमने मास्टर ब्लैक बेल्ट में ये देखा था कि इम्प्रूवमेंट को लीड करने का, तो जो भी मतलब उसमें सोल्यूशंस हैं इम्प्रूवमेंट को लेके, उसमें हर तरह की जो गाइडलाइंस है उस पर क्लैरिफिकेशन वो देगा अपने जूनियर्स को, अपने सबॉर्डिनेट्स को, जो कि ग्रीन बेल्ट हो सकते हैं, येलो बेल्ट हो सकते हैं, उनको फैसिलिटेट करना है। ठीक है, जिससे कि अच्छी तरह से इम्प्रूवमेंट हैं जो इस्टेब्लिश हो जाए और फर्दर हम उसका रिजल्ट जो हमारा डीमैक का साइकिल है उसके थ्रू हम उसका बेनिफिट ले सकें। नेक्स्ट जो ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है ट्रेनिंग की, कोच की और मेंटरशिप की ग्रीन बेल्ट्स के लिए, कि उसको ग्रीन बेल्ट्स को ट्रेन कोच और मेंटर करना है डीमैक मेथोडोलॉजी के लिए, और जो भी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स हैं उसको लेके। ठीक है, ये ऑनगोइंग मैनर में होगा। जब ये सारी टीम किसी सिंगल प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्ट पे वर्क करी होंगी सिक्स सिग्मा के, ठीक है, तो उसे ग्रीन बेल्ट्स को मेंटरशिप, कोचिंग और ट्रेनिंग देनी है डीमैक और टेक्निक्स को लेके। साथ ही साथ जो नेक्स्ट ब्लैक बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्टिसिपेशन है। जो भी गेट रिव्यूज होंगे उसमें उसको डायरेक्टली पार्टिसिपेट करना है और उसको उसको एक
यहाँ पे स्टैंडर्ड कहता है कि प्रेजेंटेशन देने के लिए जो प्रेजेंटेशन है गेट रिव्यू का वो ब्लैक बेल्ट ही प्रिपेयर करेगा। और वो किसी भी फेज पे हो सकती है और किसी भी डेट पे हो सकती है। जब भी हमारे अकम्पलिशमेंट डेट हो उस पे ये प्रेजेंटेशन प्रिपरेशन और उसका रिव्यू टीम के साथ ये ब्लैक बेल्ट की रिव्यू मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है ब्लैक बेल्ट के बाद वो है ग्रीन बेल्ट है डेजिग्नेशन। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कीवर्ड्स आते हैं वो है डिलीवर एग्रीड बेनिफिट ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, improvement activity, work with local line management, direction of a black belt, lead a smaller Six Sigma project, which process operator, yellow belts. So ब्लैक बेल्ट के जो सबॉर्डिनेट है वो ग्रीन बेल्ट है। ग्रीन बेल्ट की जो अभी हमने कीवर्ड्स डिस्कस किए उसमें है जो भी हमारे सबसे पहला है कि जो एक्सपेक्टेड एग्रीड बेनिफिट्स हमारे निकल के आ रहे हैं सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के उनको डिलीवर करना है। डिलीवर करने का मतलब है का जो भी इम्प्रूवमेंट्स हमारे निकल के आए हैं बेनिफिट उनका इम्प्लीमेंटेशन उनका इंटीग्रेशन उनका मेंटेनेंस ये सब इंश्योर करना है ग्रीन बेल्ट को। ठीक है। और कहीं ना कहीं ग्रीन बेल्ट जो का जो पोजीशन है वो इस लेवल पे इन्वॉल्व रहता है कंपनी में कि उसका इंटरेक्शन जो है ग्राउंड लेवल पे एक बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ग्राउंड लेवल टीम से डायरेक्टली एसोसिएटेड होता है जिसमें ऑपरेटर्स आते हैं जो कि एक येलो येलो बेल्ट के लेवल के होते हैं। तो ग्रीन बेल्ट की बहुत इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इम्प्रूवमेंट एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छी तरीके से हो और कहीं ना कहीं यही डिसाइसिव होता है एक सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के इम्प्रूवमेंट को लेके। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ग्रीन बेल्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी अदर देन द ब्लैक बेल्ट और मास्टर ब्लैक बेल्ट या फिर येलो बेल्ट। तो ग्रीन बेल्ट को यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है। साथ ही साथ स्टैंडर्ड में जो चीज़ें और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई ग्रीन बेल्ट की कि वो वर्क करेगा लोकल लाइन मैनेजमेंट के साथ। जो भी लाइन मैनेजमेंट है प्रोसेस का उसके साथ उसको वर्क करना है जिससे कि अब वो आइडेंटिफाई कर सके क्वांटिफाई कर सके अपॉर्चुनिटीज़ को फर्दर इम्प्रूवमेंट के लिए। और जो कि लोकल इन्वायरमेंट की बात होती है कि लोकल इन्वायरमेंट मतलब एक प्रोसेस है वो जो उसका लाइन मैनेजमेंट है वो लोकल इन्वायरमेंट उसको कहते हैं। तो वही का वही एक इम्प्रूवमेंट को आइडेंटिफाई करना क्वांटिफाई करना उसके रिस्पेक्ट में अपॉर्चुनिटी को ये ग्रीन बेल्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ जो ग्रीन बेल्ट वर्क करेगा वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ ब्लैक बेल्ट करेगा। जो भी उसको डायरेक्शन मिलेगी वो ब्लैक बेल्ट से मिलेगी उसको फॉलो करना है। ठीक है। ठीक है। और कहीं ना कहीं जो ग्रीन बेल्ट है वो लीड करेगा स्मॉलर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। इसका ध्यान देना है लेकिन वो हमेशा ब्लैक बेल्ट उसको डायरेक्शन देगा। इस चीज़ का भी खास ध्यान रखना है। कहीं पे भी मतलब ग्रीन बेल्ट अभी उस लेवल का नहीं है या फिर उसकी नॉलेज उस लेवल की नहीं है कि वो लीड कर सके। तो उसको हमेशा डायरेक्शन लेना है ब्लैक बेल्ट से। और स्मॉल स्मॉल सिक्स प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं वो लीड भी कर सकता है। ये भी स्टैंडर्ड सजेस्ट करता है। साथ ही साथ जो ग्रीन बेल्ट की नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है कोचिंग देने की। जो भी प्रोसेस ऑपरेटर्स हैं प्रोसेस ऑपरेटर यानी येलो बेल्ट्स जो प्रोसेस को ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है। जो लाइन मैनेजमेंट में एक प्रोसेस की ऑपरेटर्स हैं वो मशीन ऑपरेटर्स हो सकते हैं या फिर सुपरवाइजर्स हो सकते हैं। ठीक है। उनकी जो कोचिंग है
प्रोसेस इम्प्रूवमेंट को, मेथड्स को और एक्टिविटीज़ को लेके कि कोचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ग्रीन बेल्ट के अंदर में आती है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट जो अपना डेफिनेशन है वो है येलो बेल्ट का। तो येलो बेल्ट में जो मैंने कीवर्ड्स लिए हैं उसमें है यूजुअली अ प्रोसेस ऑपरेटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंस और ट्रांजैक्शनल सेंस, process Six Sigma project work with green belt for improvement, direction of black belt or green belt, participate in a smaller SSP. ये कीवर्ड्स लिए हैं मैंने येलो बेल्ट के रिस्पेक्ट में। सो जैसे मैंने बताया कि येलो बेल्ट एक ऑपरेटर हो सकता है जो कि लाइन मैनेज करता है किसी प्रोसेस की। ठीक है। सुपरवाइजर हो सकते हैं, मशीन ऑपरेटर्स हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं। इस तरह से येलो बेल्ट को देखना है। तो येलो बेल्ट मतलब एक सबसे नीचे का डेफिनेशन है ट्री में, जो हमने अभी ट्री डिस्कस की थी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को लेके। तो इसकी जो नॉलेज है वो सबसे बेसिक होगी सिक्स सिग्मा को लेके। तो इस तरह से हमें चीज़ों को इंश्योर करना है। तो जो ऑपरेटर होंगे वो येलो बेल्ट हो सकते हैं। अभी हम उसकी एक मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे कि जो अलग अलग बेल्ट्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसी क्या होना चाहिए, उनकी एक्सपर्टाइज क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर की बात कर ली। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेंस में भी हो सकते हैं, ऑफिस और टर्मिनेशन सेंस में भी हो सकते हैं। और जो इनका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है पार्टिसिपेशन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में। जब भी एक सिक्स सिग्मा एक प्रोसेस के लिए हम इम्प्लीमेंट करते हैं और जिस भी मतलब पोर्शन में या फिर एरिया में या फिर जो भी स्कोप में उस प्रोसेस के येलो बेल्ट ऑपरेट कर रहा है उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है सिक्स प्रोजेक्ट टीम के लिए, टीम में। और इसके लिए जो चीज़ें करनी होंगी येलो बेल्ट को वो है सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसको ग्रीन बेल्ट के साथ वर्क करना है। ठीक है। जिससे कि चीज़ें आइडेंटिफाई और क्वांटिफाई कर सकें अपॉर्चुनिटीज़ को इम्प्रूवमेंट की फर्दर। और वो अंडर डायरेक्शन वर्क करेगा ब्लैक बेल्ट के और ग्रीन बेल्ट के। ठीक है। और साथ ही साथ वो पार्टिसिपेट करेगा स्मॉलर सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को। जैसे कि मैंने बताया जो भी प्रोसेस का लिमिट है उसका, जहाँ तक उसका वो वर्क कर रहा है उस प्रोसेस में, जो भी उसकी रीच उस प्रोसेस में, उससे रिलेवेंट जो भी सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट की चीज़ें हैं उसमें उसको पार्टिसिपेट करना है। लेकिन वो हमेशा ग्रीन बेल्ट की डायरेक्शन में रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी डिफाइन की हुई थी अलग अलग इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को लेके, जो भी हमारे सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट में नेसेसरी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है वो है, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वो सेवेंथ क्लॉज है, मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड की। कि मिनिमम कॉम्पिटेंस क्या होना चाहिए अलग अलग पोजीशंस को लिए, वो यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। ठीक है। सो जस्ट अ सेकेंड। तो पहला कॉलम जो है मिनिमम कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड में स्किल है, मास्टर ब्लैक बेल्ट है। सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम है ब्लैक बेल्ट है। फोर्थ कॉलम ग्रीन बेल्ट है। फिफ्थ कॉलम येलो बेल्ट है। तो सबसे पहला जो स्किल आता है वो है बिजनेस परसेप्शन का। और इसमें नंबर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, डिफाइन किया है लेवल 0 नॉट नीडेड, लेवल 1 बेसिक कॉम्पिटेंस, लेवल 2 प्रोफिशिएंट यूजर, लेवल 3 हाईएस्ट लेवल ऑफ एबिलिटी। साथ ही साथ यहाँ पे एक नोट मेंशन किया हुआ है, अ वैल्यू ऑफ 0 इज इन द टेबल इंडिकेट्स दैट to fulfill the given role a certain skill may not be needed. It does not mean that the individual in the role has no knowledge of that particular skill. ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है।
सो पहला जो स्किल है वो बिजनेस परसेप्शन का है, तो मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 2 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट के लिए 1 है। सेकंड है कंप्यूटर कंप्यूटर लिटरेसी, तो मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट के लिए 1 है। कस्टमर फोकस नेक्स्ट जो स्किल है वो मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 3 है और येलो बेल्ट के लिए 3 है। ठीक है, तो कस्टमर फोकस एक प्रिंसिपल है जो कि अभी हमने बिजनेस प्रिंसिपल की बात की थी, क्वालिटी पॉलिसी की क्वालिटी प्रिंसिपल की बात की थी ISO 9000 के रिस्पेक्ट में इनिशियल ट्रेनिंग में, इनिशियल पेजेस में। तो यहाँ पे सभी के लिए 3 है, मिनिमम रिक्वायरमेंट है सारे बेल्ट्स के लिए। कंप्यूटर लिटरेसी से आप समझ सकते हो कि जो लेवल ऑफ नॉलेज है या फिर ओवरऑल स्किल है कैसी होनी चाहिए, डेफिनेशन का पर्सन होना चाहिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट है वो है इंटरपर्सनल स्किल, ये भी मास्टर ब्लैक बेल्ट की 3 है, ब्लैक बेल्ट की 3 है, ग्रीन बेल्ट की 2 है, येलो बेल्ट की 1 है। मोटिवेशनल स्किल नेक्स्ट है, ये है मास्टर ब्लैक बेल्ट की 3, ब्लैक बेल्ट की 3, ग्रीन बेल्ट की 2, येलो बेल्ट की 1। न्यूमरेसी की बात है फिर नेक्स्ट, तो यहाँ पे मास्टर ब्लैक बेल्ट की 3 है, ब्लैक बेल्ट की 2 है, ग्रीन बेल्ट की 1 है, येलो बेल्ट की 1 है। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल फिर है, ये मास्टर ब्लैक बेल्ट में 3, ब्लैक बेल्ट में 2, ग्रीन बेल्ट में 3, येलो बेल्ट में 1। प्रेजेंटेशन ऑफ स्किल है, उसमें मास्टर ब्लैक बेल्ट में 3, ब्लैक बेल्ट में 3, ग्रीन बेल्ट में 2, येलो बेल्ट में 0। प्रोसेस इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस, मास्टर ब्लैक बेल्ट में 3, ब्लैक बेल्ट में 2, ग्रीन बेल्ट में 1, येलो बेल्ट में 0। प्रोसेस मैनेजमेंट स्किल, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3, ब्लैक बेल्ट के लिए 3, ग्रीन बेल्ट के लिए 2, येलो बेल्ट के लिए 0। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, मास्टर ब्लैक बेल्ट के 3, ब्लैक बेल्ट के लिए 3, ग्रीन बेल्ट के लिए 2, येलो बेल्ट के लिए 0। रिजल्ट्स ड्रिवन, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3, ब्लैक बेल्ट के लिए 3, ग्रीन बेल्ट के लिए 2, येलो बेल्ट के लिए 2। सिक्स सिग्मा टूल्स नॉलेज, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 2 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट के लिए 1 है। स्टैटिस्टिकल स्किल्स के लिए मास्टर ब्लैक बेल्ट की 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 2 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट के लिए 0 है। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है और येलो बेल्ट के लिए 0 है। ट्रेनिंग स्किल्स, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, येलो ब्लैक बेल्ट के लिए भी 3 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट के लिए 0 है। कोचिंग स्किल्स, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 3 है, ब्लैक बेल्ट के लिए 2 है, ग्रीन बेल्ट के लिए 2 है, येलो बेल्ट के लिए 0 है। तो ये मिनिमम कॉम्पिटेंस है, ट्रिक्स है जो कि अलग अलग बेल्ट्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड है, जो भी यहाँ पे लेवल डिफाइन किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ही हमें अपना प्रोजेक्ट को प्लान करना है, डेलिनेट करना है, लोगों को एलोकेट करना है, पोजीशन लेनी है। ठीक है, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। फिर जो नेक्स्ट स्लाइड है वो है हमारा, जस्ट अ सेकेंड। सो नेक्स्ट स्लाइड पे जो ये मिनिमम सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, ये अपना नेक्स्ट क्लॉज है, ये 8th क्लॉज है बेसिकली। तो इसमें रिकमेंडेड ट्रेनिंग की बात की गई है पहले स्लाइड में कि रिकमेंडेड ट्रेनिंग क्या होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग वेज जो है, सबसे पहले इसमें जो कीवर्ड लिए हैं रिकमेंडेड ट्रेनिंग में वो है ट्रेनिंग वेज, फॉर्मल, क्लासरूम स्टाइल, ई लर्निंग, डिस्टेंस लर्निंग। तो जो ट्रेनिंग वेज हैं वो इन तीनों तरह के हो सकते हैं। ठीक है, फॉर्मल क्लासरूम मैनर में हो सकते हैं वो, या फिर ई लर्निंग मैनर में हो सकते हैं, डिस्टेंस लर्निंग के मैनर में हो सकते हैं। ठीक है, और जो रिकमेंडेड ट्रेनिंग है उसका यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है,
सो फर्स्ट जो कॉलम उसमें कैटेगरी है, उसमें है इंस्ट्रक्शंस, डेज, ट्यूटोरियल्स, डेज, नंबर ऑफ क्वालिफाइंग सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो फर्स्ट जो इसमें डेफिनेशन है वो है चैंपियन और डिप्लॉयमेंट मैनेजर, फिर है स्पॉन्सर, मास्टर ब्लैक बेल्ट, फिर है ब्लैक बेल्ट, फिर है ग्रीन बेल्ट, फिर येलो बेल्ट। तो जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसकी डे की ट्रेनिंग कितनी होनी चाहिए? चैंपियन और डिप्लॉयमेंट मैनेजर की 3 दिन की होनी चाहिए, स्पॉन्सर की 1 दिन की, मास्टर ब्लैक बेल्ट की 10 डेज की, ब्लैक बेल्ट की 20 डेज की, ग्रीन बेल्ट की 5 डेज की, येलो बेल्ट की 1 डे की। ट्यूटोरियल्स बेस हैं, चैंपियंस के लिए कुछ भी नहीं है, स्पॉन्सर के लिए भी कुछ भी नहीं है, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 2 डेज का है, ब्लैक बेल्ट के लिए 5 डेज का है, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 डेज का है, येलो बेल्ट के लिए 0 डेज है। नंबर ऑफ क्वालिफाइंग सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स जो है उसमें चैंपियन और डिप्लॉयमेंट मैनेजर के लिए कुछ नहीं रिक्वायरमेंट है, स्पॉन्सर के लिए कुछ नहीं है, मास्टर ब्लैक बेल्ट के लिए 2 हैं, ब्लैक बेल्ट्स के लिए 2 हैं, ग्रीन बेल्ट के लिए 1 है, येलो बेल्ट्स के लिए 0 है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप ये ए सी बी अलग अलग देख सकते हो, तो यहाँ पे उसको डिफाइन किया है। ए का यहाँ पे है टू बिकम अ चैंपियन इट इज नॉट एनफ टू जस्ट कंप्लीट चैंपियन ट्रेनिंग। ठीक है, B. A master black belt will have previously completed black belt training and performed this role for at least 2 years and will consequently have completed number of Six Sigma projects. ठीक है. C. The instructions given is assumed to be delivered in a classroom. Some companies substitute some of this time with distance e-learning. ठीक है. Next, the master black belt training is usually split into 2 weeks, separated by short interval of time, examples 2 weeks. Next, the black belt training is usually divided into 5 4 day duration, are some suitable divisions. Example 4 5 day duration each is separated by another 3 to 4 weeks. ठीक है, तो ये एक जनरलाइज्ड रिकमेंडेड ट्रेनिंग का मैट्रिक्स है जो कि हमें फॉलो करना है जब भी हम सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट को स्टैब्लिश करें या उसकी टीम को फ्रेम करें। ठीक है, जो कि रिकमेंडेड है स्टैंडर्ड के द्वारा, तो हमें इसको फॉलो करना है। अब नेक्स्ट चलते हैं, तो मिनिमम सिक्स सिग्मा ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट का जो क्लॉज है 8, इसके ही अंडर आता है नेक्स्ट पॉइंट। सो फर्स्ट इसमें है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर चैंपियंस एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजर। इसमें जो कीवर्ड्स मिलेंगे हैं फैमिलाइज विद डीमैक एंड टूल्स, प्रोजेक्ट सिलेक्शन, स्कोपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। सो अभी हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्कस की थी ट्रेनिंग के थ्रू, उसी से ये रिलेवेंट है और उसी से रिलेवेंट हमें ट्रेनिंग जो नीड्स हैं स्टैंडर्ड में दी हुई हैं पर्टिकुलर टेक्नीशियंस के लिए, वो हमें समझनी है। ठीक है, तो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर चैंपियन एंड डिप्लॉयमेंट मैनेजर में जो चीज़ें आती हैं वो है, पहले की उसको फैमिलाइज करना है डीमैक को लेके और रिलेवेंट टूल्स को लेके, प्रोजेक्ट सिलेक्शन को लेके, स्कोपिंग को लेके प्रोजेक्ट की, और फर्दर इम्प्लीमेंटेशन को लेके। तो ये मिनिमम चीज़ें उसको आनी चाहिए और उसके रिस्पेक्ट में उसको हमें ट्रेनिंग देनी है चैंपियन और डिप्लॉयमेंट मैनेजर के लिए। फिर नेक्स्ट जो हमारा है वो है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर स्पॉन्सर्स। तो उसकी जो ट्रेनिंग नीड्स में है वो है फैमिलाइज विद डीमैक एंड टूल्स। ठीक है, तो उसको फैमिलाइज हमें करना है डीमैक से और टूल से। फिर साथ ही साथ उसको फुली पार्टिसिपेशन इन गेट रिव्यूज, तो इससे रिलेवेंट जो ट्रेनिंग है वो हमें देनी है। इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे चीज़ों को करेंगे, जो भी हमारे गेट रिव्यू से हमारे इम्प्रूवमेंट्स की चीज़ें निकल के आ रही हैं या बेनिफिट्स निकल के आ रही हैं, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कैसे करना है, उसकी ट्रेनिंग उसको हमें देनी है। बिजनेस एप्लीकेशन विद सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट डिलीवरेबल्स एंड इवेल्युएशन, और जो हमारी इवेल्युएशन है सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट के या फिर डिलीवरेबल्स निकल के आए हैं
उसको एज अ बिजनेस एप्लीकेशन कैसे यूटिलाइज करना है, उसकी भी ट्रेनिंग हमें स्पॉन्सर को करनी है। फिर जो नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर मास्टर ब्लैक बेल्ट। इसमें जो चीज़ें आती हैं ट्रेनिंग नीड की, वो है मस्ट हैव मिनिमम ब्लैक बेल्ट नॉलेज, सबसे इम्पोर्टेंट है, तो ये हमें इंश्योर करना है। उसके बाद उसको उसको नेक्स्ट होना चाहिए की नॉलेज उसको होनी चाहिए स्टेटिस्टिकल मेथड्स की, मैथमेटिकल टेक्निक्स की, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक्स की, टेलर्ड प्रिसाइज ट्रेनिंग एजेंडा की। ठीक है, तो ये बेसिक ट्रेनिंग नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कि एक मास्टर ब्लैक बेल्ट को होनी चाहिए। फिर इसके नेक्स्ट चलते हैं हम। फिर है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ब्लैक बेल्ट। उसमें जो चीज़ें आती है वो मस्ट है मिनिमम ग्रीन बेल्ट नॉलेज और इक्विवेलेंट। ठीक है, रिटन एंड ओरल असेसमेंट उसका करना है हमें। ठीक है, रिटन एंड ओरल असेसमेंट कब होगा, जब हम उससे एक इंटरेक्ट करेगा मास्टर ब्लैक बेल्ट, तो उसका रिटन और ओरल असेसमेंट करेगा कि ही इज competent फॉर द ब्लैक बेल्ट और नॉट। ठीक है, फिर इसके बाद एक कंप्लीशन ऑफ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए, सिक्स होने के लिए, ब्लैक बेल्ट बनने के लिए। एसएस बाय मास्टर ब्लैक बेल्ट ये मैंने आज डिफाइन किया है। और एडिशनल एसएसपी, मतलब कुछ एडिशनल एसएसपी भी हो सकते हैं, सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर ग्रीन बेल्ट्स। तो ग्रीन बेल्ट्स के लिए जो ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या हैं, वो है पहला रिटन एंड ओरल असेसमेंट, कंप्लीशन ऑफ वन सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। और जो इसका रिव्यू है रिटन एंड ओरल असेसमेंट, वो कौन करेगा, वो करेगा ब्लैक बेल्ट। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है ग्रीन बेल्ट के लिए। फिर जो नेक्स्ट है वो है ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट फॉर येलो बेल्ट। इसमें जो चीज़ें आती हैं वो है वन डे सिक्स सिग्मा अवेयरनेस बाय ब्लैक बेल्ट और ग्रीन बेल्ट। ठीक है, जैसे मैंने ईश्वर ट्रेनिंग की वीडियो में बोला कि आप येलो बेल्ट के लेवल की नॉलेज गेन कर लोगे, मतलब डीमैक के रिस्पेक्ट में, इस स्टैंडर्ड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अगर ये आप वीडियो, हाँ, आप ट्रेनिंग अटेंड किया आपने तो। ठीक है, तो येलो बेल्ट का एक दिन की सिक्स सिग्मा अवेयरनेस की ब्लैक बेल्ट के थ्रू और या फिर ग्रीन बेल्ट के थ्रू ट्रेनिंग होनी चाहिए। और साथ ही साथ उसकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग होनी चाहिए, जॉब जो कर रहा है उसका जो डेली वर्क है उसके साथ साथ इस ट्रेनिंग करनी है हमें कि कैसे रिकॉर्ड्स फिलअप करने हैं, और क्या चीज़ें हैं जो हम सिक्स सिग्मा के एक्सपर्ट उसको मेंटेन करनी है, क्योंकि वो एक ऑपरेटर है, एग्जीक्यूटिव हो सकता है, एक सुपरवाइजर हो सकता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात होती है। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया। ऑल एम्प्लॉयज, यहाँ पे येलो बेल्ट ट्रेनिंग की बात होती है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं कंपनी के एक प्रोसेस के अंदर, उनकी मिनिमम एक येलो बेल्ट की ट्रेनिंग होनी चाहिए। कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, या फिर ईजी चीज़ है कि आप इस ट्रेनिंग को कर सकते हो येलो बेल्ट की। ठीक है, तो ये यहाँ तक रहा एट्थ क्लास। ये हमारा पार्ट वन है वीडियो का ट्रेनिंग का। अब हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट हम सेकेंड वीडियो पे नाइन्थ क्लास से जो नेक्स्ट क्लासेस हैं एट्थ के बाद, उसको एक नेक्स्ट ट्रेनिंग वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।